صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی صبح سویرے میں خوش آمدید. اور ہمیشہ آپ ہمیں یہ ہفتہ اور اتوار لائیو دیکھتے ہیں اور بالکل پورے پاکستان کو ہم ایک انفارمیٹیو شو ایوری ویک دیتے ہیں, 2 شو. اور آج بھی ہم آپ کو اچھی انفارمیشن دیں گے, تیکھے تگڑے سوالات کریں گے. جماعت اسلامی کے قادر کھٹک صاحب کو سر آج ہم نے صبح سویرے میں مدعو کیا ہے اور غالباً کراچی کا ٹریفک عبور کرتے ہوئے وہ یہاں لائیو آ کے پہنچے ہیں. خوش آمدید کہیں گے سر, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت یا سب سے آخر میں نمبر آتا ہے اس کا؟ کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے. شکر الحمدللہ. کراچی میں بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں, ٹھیک ہے. سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے. ڈسٹرکٹ ملیر میں پانی کی بوند بوند کے لیے لوگ ترس گئے ہیں. میں جس علاقے سے بلونگ کرتا ہوں, نہیں, ملیر کا جہاں تک آپ نے نام لیا تو مجھے یاد آ گئے کہ کراچی کے جو ڈپٹی میئر ہیں سلمان عبداللہ مراد بلوچ صاحب, وہ بھی ملیر سے ان کا تعلق؟ بالکل, ان کا تعلق ملیر سے. تو یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں پانی نہ دیں لوگوں کو؟ پانی نہیں مل رہا. میں جس علاقے میں میری رہائش ہے, اسٹیل ٹاؤن نام ہے, اسٹیل مل کالونی کا علاقہ ہے وہ, اور فیز 1 اور فیز 2 میں, اور تقریباً پوری ملیر میں پانی کا اتنا مسئلہ ہے کہ 20 دن سے پانی کا بوند بھی نہیں آ رہا. ٹینکر میں تو پانی آ رہا ہے مگر نلکوں میں پانی نہیں آ رہا. اتنے گندے حالات ہیں, 20 دن سے پانی کا بوند نہیں ہے. پھر آپ ٹریفک کے معاملات دیکھ لیں, پھر اس کے بعد آپ روڈوں کی حالت دیکھ لیں, بجلی کے معاملات دیکھ لیں, بجلی کے مسائل دیکھ لیں. 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی, 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ آپ ٹینکر مافیا کا روج دیکھ لیں, ہر دن کسی نہ کسی گھر پہ لاش جا رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ چالان کیا جا رہا ہے, چالان کے نام پر بتہ لیا جا رہا ہے, مجبور لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, غریب لوگوں کو دبایا جا رہا ہے. ہم اس بات کے خلاف نہیں ہیں کہ نمبر پلیٹ پہ اجرت نہیں ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, مگر جس کی آڑ میں ٹریفک پولیس والے غریبوں کو لوٹ رہے ہیں, یہ حکومت کا سسٹم بنتا ہے کہ وہ دیں, وہ فری میں نمبر پلیٹ دیں, مگر یہ ہم لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. ہر دن چلان, 2000 کا چلان, 3000 کا چلان. 2 دن پہلے کسی کا چلان کیا گیا, اس نے بائک ہی اپنی جلا دی. آپ مجھے خود بتائیں گے جو 500 روپے کا پیٹرول ڈلائے گا وہ 3 سے یا 4000 چلان کیسے بھرے گا؟ تو یہ اتنا ظلم کراچی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. کراچی کے ساتھ تو ہمیشہ سوتیلی ماں کا سلوک کیا گیا ہے. کراچی میں پانی نہیں ہے, بوند بوند کے لوگ ترس گئے. ٹینکر کے تھرو آپ کو پانی ملے گا مگر نلکوں میں پانی نہیں آئے گا. کراچی میں آپ روڈوں کی حالت دیکھ لیں, کراچی میں آپ ڈمپر کے بدماشی دیکھ لیں, جو کسی نہ کسی کی لاش جو ہے نا کسی نہ کسی گھر پہ گفٹ بھیجی جاتی ہے. اس کے علاوہ چوری ڈکیتیاں دیکھ لیں, اس کے علاوہ منشیات دیکھ لیں, اس کے علاوہ آپ جو ہے نا روزگار کے معاملات دیکھ لیں. کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا ہے, کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی سٹی کہلایا جاتا ہے, مگر کراچی کے ساتھ جتنا سلوک غیر طریقے سے سلوک کیا جاتا ہے اتنا سوتیلی ماں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. چلیں, غالباً کراچی کے جو حالات آپ بتا رہے ہیں, لیکن حکومت وقت کہہ رہی ہے کہ ہم سڑکیں بھی بنا رہے ہیں, ہم پارکس بھی بنا رہے ہیں, ہم لوگوں کی سہولت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو آپ کو سہولت نہیں چاہیے؟ نہیں, دیکھیں, ہمیں سب سے پہلے پانی چاہیے. جب ہمیں پانی نہیں ملے گا تو ہمیں پانی نہیں ملے گا تو ہم پارک کر کیا کریں گے؟ ہمیں روڈ ٹوٹے پھوٹے روڈ جو مل رہے ہیں جس میں ہماری گاڑیوں کا کباڑ خانہ ہو رہا ہے, تو ہمیں کیا ہوگا جب ہمارے گھروں میں. چلے پروڈیوسر صاحب ایک بریک لیں ذرا, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, غالباً ایک ٹیکنیکل پرابلم. بریک لیں اور بریک کے بعد آتے ہیں. سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین. بریک کے بعد خوش آمدید. اور سیٹ پر ہمارے موجود ہیں نوید قادر کھٹک صاحب, آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ ملیر کے, اور ان کے ساتھ ایک اور گیسٹ بھی ہمیں جوائن کیا ہے غالباً فائزہ. بالکل, ہمیں عمیر میمن صاحب نے جوائن کیا ہے, اور ان کا تعارف جو ہے وہ مشہور زمانہ میمن بائٹس ہے. اور میمن بائٹس کیا ہے یہ عمیر سے ہی جانتے ہیں تھوڑا سا. السلام علیکم عمیر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. بائٹس تو کھانے کو کہتے ہیں؟ ہاں بالکل, کھانے کو نوالے کو. یہ کیا ہے؟ بائٹس میرے پاس الگ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے گول گپے ہوتے ہیں وہ بھی 1 بائٹ ہے, اچھا, اور کٹوری چاٹ ہوتی ہے, کڑی والے چھولے ہوتے ہیں, کھاؤسا ہوتا ہے. اور دیکھیں ہر جگہ ملتا ہے ہمیں, آپ میں ایسا کیا
ये तो आप खा के बताइए अच्छा ना। खा के अच्छा, बताइए। यानी कि आप देखिए खाना तो हर किस्म का मिलता है, हर जगह मिलता है। यानी तो कि आप लोग सुबह सुबह हमारे लिए फ्रेश जो है वो बना कर लाएं। बिल्कुल फ्रेश लेके आए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा, स्पेशलिटी क्या है? वैसे तो ये सारी चीज़ें कराची की स्पेशलिटी है कि कराची जो है वो जाना माना जाता है हमारी फूड स्ट्रीट से। मैंने तो जो है मेमन के उससे जो है ना नाम रखा हुआ है, तो मेमन की जो स्पेशलिटी है वो खौसा। अच्छा, ठीक है। अब इंशाल्लाह जो खौसे के अंदर जो है ना थोड़ा सा मैंने चेंजिंग की हुई है। अच्छा तो हम तो खौसे में पहले सालन डालते थे, अच्छा तो कि अपना चिकन का और बीफ का, अब मैंने उसको बारबेक्यू में कन्वर्ट किया है। अच्छा, इंशाल्लाह ज़बरदस्त। पहली तारीख को जो है वो बारबेक्यू के अंदर टिक्का बोटी, बिहारी बोटी, अच्छा। मलाई बोटी, इसके साथ जो है वो इंशाल्लाह ये खौसा ये बनाएंगे। कब से उमर काम कर रहे हैं, कितना अरसा हो गया? देखिए, एक मुझे- होती है लेगेसी जी, मेरे वालिद और मेरे दादा करते थे। मेरे वालिद साहब का काम जो है वो गोले गंडे का था। ठीक है। तो मेरे वालिद साहब शेफ भी थे, तो इनका इस तरफ जो है वो रुझान इतना नहीं था गोले गंडे पे, तो उन्होंने मुझे शेफ बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी दुआएं और उनकी मेहनत है तो रंग बिल्कुल, लाई है। बिल्कुल। तो ये काम जो है मैं 19 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने आज बड़ी इज्जत दी हुई है मुझे मेमन बाइट के नाम से। तो ये कहाँ है मेमन बाइट्स? लोगों ये- को बताएं ना ताकि वो पहुंचे फिर। ये दोराजी में है, दोराजी है, जमालनूर हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ ही है। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। तो आपको किन दिनों में ज़्यादा आपको लगता है कि कराची वाले ज़्यादा पहुंचते हैं ये सारी चीज़ें खाने के लिए? ठीक है, मेरे पास आम दिन में तो ऑफिस का काम होता है, तो वहाँ अच्छा। डिलीवरी जाती है। खौसा जो है हर कोई बंदा बनाता नहीं है। हाँ ठीक बिल्कुल, है। और वीकेंड पे तो मेरे पास रश बहुत ज़्यादा होती है। वीकेंड्स पे होता है, संडेज पे होता है। सैटरडे संडे जो है रश होता है मुझे ठीक मेरे है। पास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप खुद बनाते हैं, इसके स्पाइसेस जो है वो खुद तैयार करते हैं? ये देखिए मैं कितना खुद बड़ा भी काम है। एक होता है ना, खुद भी हमें बनाता हूँ। डिलीवरी के ऑर्डर आते हैं जी, मैं खुद भी बनाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ भी इसके अंदर शामिल होती है। अच्छा, वाइफ भी कर तो रहा ये होम मेड है सारा, और बाजार ही नहीं है, सारा होम मेड से बनता है। ज़बरदस्त, यानी आप खुद सारी जी। रेसिपीज बनाते हैं। ये उसमें कुछ इनोवेशन लेके आए हैं या वही रिवायती जो पूरे कराची में गोलगप्पे चल रहे हैं वही है, या कुछ आप चेंजेस लेकर आए हैं? नहीं, गोलगप्पे के देखें मेन मसला ये गोलगप्पे के लिए चटनी अच्छी होनी चाहिए। चटनी अच्छी होनी चाहिए। अगर चटनी अच्छी है तो आपके गोलगप्पे बड़े अच्छे बनेंगे। सही। और अभी आप अनकरीब जो है वो एक और भी अपना शायद लॉन्च करने जा रहे हैं जी, यहाँ वो पे। बारबेक्यू खौसा है, लाइव बारबेक्यू खौसा बनेगा। लाइव बनेगा। ठीक है। और इंशाल्लाह जो है पिज़्ज़ा फ्राई, और हम आपको फिर बुलाएंगे। मैं और भी आपसे बातें करूंगा। हमारे साथ जमात इस्लामी के नौजवान रहनुमा मौजूद हैं और गालिबन मलिक साहब तशरीफ़ लाएँ, और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिकल लीडर्स हमसे रब्ता करते हैं कि हमने अवाम की आवाज़ उठानी है, हमने अवाम के लिए कुछ बात करनी है। पॉजिटिव क्या हो रहा है, इस पर भी तो बात होनी चाहिए सर। कुछ अच्छा नहीं हो रहा? हमें तो कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा, अगर शायद आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने आपको पहली बात भी कही थी कि कराची में पानी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मलिक पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। के इलेक्ट्रिक बिजली बंद करती है, 18 घंटे लोड शेडिंग है। इसके बाद हमारे इलाके में गैस नहीं है। उसके बाद जो टैंकर माफिया चल रहा है वो बाइक सवार वालों को रोज़ 3 से 4 लोगों को जान से मार रहा है। इसका जिम्मेदार कौन? इसके अलावा चोरियाँ डकैतियाँ देख लें, रोज़ बरोज़ मामूल बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आप नौजवानों के मामला देख लें, मंशियात इतना अरूज पे चला गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट मलिर में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट मलिर में कोई हॉस्पिटल नहीं है। 6 MPA और 3 MLA होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं है। अगर हमारे में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए हमारे इलाके डिस्ट्रिक्ट मलिर में, तो जना हॉस्पिटल पहुंचने के लिए उसको 1 घंटे की ड्राइव करनी पड़ती है। तो आप बताएं उस पर क्या गुजरेगी। सही। गुलशन नदीद में 20 दिन से पानी नहीं है, जिसकी मकामी जमात के लोगों ने 2 दिन पहले भी मुजाहरा किया, और इससे पहले 3 दिन पहले मुजाहरा किया, और 5 लोगों को पे FIR काट दी गई मुजाहरा करने पे। इसके बाद स्टील मिल जब तबाह हुई, जब स्टील मिल को तबाह किया गया तो 20,000 घराना तबाह और बर्बाद हुआ। ठीक है, 20,000 घराना सब लोगों को निकाल दिया। अब आप स्टील मिल की कॉलोनी में, स्टील टाउन में जाएं तो आप उनके हालात देखें। उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उनके वजह बात स्टील मिल नहीं दे रही। जब हमने रेलवे ट्रैक बंद किया तो रेलवे ट्रैक बंद किया तो CM साहब का फ़ोन आया। CM साहब ने कहा कि ये मामला मैं आप लोगों के देखूंगा, आप लोग मेरे पास आना। मगर पाकिस्तान स्टील का CEO इतना पावरफुल है कि वो CM को कुछ नहीं समझता। फिर आप बिजली के बिल देखिए, 1 यूनिट का बिल 50,000 रुपए बेच रहे हैं। 1 यूनिट का बिल नहीं, मुमकिन है ये टेक्निकल एरर हो। नहीं, टेक्निकल एरर नहीं है। हाँ, सिस्टम एरर हो जाता है। नहीं, मिस्टेकनली आ गया, बिल गलती से आ गया। नहीं, एक का मामला नहीं है। अच्छा।
जुर्माने के तौर पे एक यूनिट का 50,000 रुपए बिल भेजा जा रहा है। आप बोले तो मैं आपको बिल व्हाट्सअप कर दूंगा, अभी मैं मंगवा लेता हूँ। पानी का बिल भेजा जा रहा है गुलशन नदीद में जो कभी नहीं दिया गया। स्टील टाउन सबसे आबाद कॉलोनी थी, स्टील मिल एशिया की सबसे बड़ी मिल थी, मगर आज उसको तबाह और बर्बाद कर दिया गया। रोज उसमें चोरियां डकैतियां हो रही हैं। आप क्योंकि आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, आपकी जमात पे भी तो इल्ज़ाम है कि आप अल खिदमत से चंदे लेते हैं और फिर वो चंदों का इस्तेमाल आप सियासत पर करते हैं। देखिए हम बिल्कुल चंदा लेते हैं, मगर जब भी कराची पे बुरा टाइम आया तो अल खिदमत ही जमात इस्लामी की शाख है जो हर जगह नज़र आई। जमात इस्लामी ने हमेशा अवाम की खिदमत की है, वो ओवरऑल पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर भी। जमात इस्लामी 1941 से कायम में, 1941 से कायम में, पाकिस्तान के बनने के 6 साल पहले से जमात इस्लामी ने हमेशा खिदमत की है। लोग इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, लगाने दें। अगर सही इलेक्शन हो जाता और धांधली नहीं होती तो आज मेयर हाफिज नईम उर रहमान होता। अगर हाफिज नईम उर रहमान मेयर होता तो अब्दुल सत्तार अफगानी की तरह कराची को रोशनी का शहर बनाता, अब या नेमतुल्लाह खान की तरह रोशनी को शहर बनाता। लेकिन वो कितना दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये ख्याल अच्छा नहीं है आपका? नहीं, आप रियलिटी देख लें, अच्छा, आप तराजू के वोट देख लें। मैंने आपको मिसाल दी ना, अगर नेमतुल्लाह खान ने कराची को जिस तरह रोशनी को शहर बनाया, किसने बनाया? अब्दुल सत्तार अफगानी ने जिस तरह रोशनी को शहर बनाया, किसने बनाया? कराची में अभी भी जहां पे हमारे टाउन चेयरमैन है, आप वहां पे जाके काम देख लें, आपको खुद अंदाज हो जाएगा। देखिए बातें करने से कुछ नहीं होता कि मैं बातें करूं कि मैं ये करूं, मैं वो करूं। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट मलीर में रहता हूँ, 6 MP है, 3 MNA होने के बावजूद भी एक CO उन्हें कुछ नहीं समझता, एक CM को एक CO कुछ नहीं समझता। आप जाएं, आप मालूमात करें, अगर मैं गलत हूं तो मैं आपका जुर्मदार हूं। आज स्टील टाउन के लोग दर बदर हैं, पानी नहीं है, बिजली काट दी गई है, उनके वाजिबात जो नौकरियों से निकाल दिया गया है, उनके वाजिबात उन्हें एक CO नहीं दे रहा। नहीं तो वो फिर लैंड कोई कब्जे की है क्या? नहीं, कब्जे की नहीं है, स्टील मिल की जमीन पर सिंध गवर्नमेंट की नजर है। अच्छा, ठीक है। और आप मालूमात ले लें, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे फोन कर देना। जमात इस्लामी यूथ डिस्ट्रिक्ट मलीर की जिम्मेदारी है मेरी, और उसमें मैं आपको ऑन लाइव कह रहा हूं कि स्टील टाउन में जितना जुल्म हो रहा है इतना फलस्तीन में भी नहीं हो रहा। सिर्फ फर्क है कि फलस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं, मगर स्टील टाउन में पानी नहीं दिया जा रहा। कभी टैंकर नहीं आया स्टील टाउन में, अब लोग टैंकर मंगा रहे हैं मजबूरी से, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। अब जगह हालात तो देखें, स्टील मिल एशिया की सबसे बड़ी मिल थी, सबसे बड़ी, और आज सिर्फ चोरियां हो रही हैं। आज हर घर लूटा जा रहा है और लोगों को निकाला जा रहा है, तबाह और बर्बाद कर दिया। इसके जिम्मेदार कौन? कराची के जो आज हालात है उसका जिम्मेदार कौन? आप मुझे बताएं। हल बताएं, फिर हल बताएं, हल क्या करें? देखिए हल, ये भी तो इलेक्टेड लोग हैं ना, ये जो बैठे हैं, ये इलेक्ट्रिक किस तरह हुए ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है इलेक्ट्रिक किस तरह हुए। ठीक है, मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ कि देखिए गरीब बंदे को क्या चाहिए? पानी, गैस, बिजली, ट्रांसपोर्ट। अभी आप मुझे बताएं कि बाइक वालों पे 5-5 हज़ार 10 हज़ार का चालान किया जा रहा है। कल शायद फिर आपने मिनिस्टर सूबाई वजीर सईद गनी साहब की गालबन स्पीच नहीं सुनी। उन्होंने कहा है कि आप मोटरसाइकिल कर रहे हैं। चलें एक कॉल ले लेते हैं ना, हमें DG नवीद रब साहब ने हमें ज्वाइन किया, आप DG एजुकेशन सिंध है। सर खुशामदीद कहेंगे नवीद रब साहब। हेलो, क्या आप सुन सकते हैं नवीद साहब? जी आवाज आ रही है सर पहले तो हम खुशामदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया सर एक गालबन आप तक पहुंची होगी, अगर नहीं पहुंची तो हम बता देते हैं कि कराची में वाक़ कॉलेज है गुलिस्तान जौहर डिग्री कॉलेज, वहाँ पर मार्कशीट के नाम पर, एडमिट कार्ड के नाम पर बच्चों से, हमारे आने वाले मुस्तकबिल से पैसे लिए जाते हैं, और वो लाइक करप्शन की मद में वहाँ के प्रिंसिपल नदीम साहब, उनके नायब कासिद, चौकीदार, मतलब उनका एक ग्रुप है जो ये काम सरंजाम देता है। और चूँकि आप जब आए हैं लाइन पर तो मुझे उम्मीद है कि 3 महीने से ये खबरें चल रही हैं और गालबन आज आप लाइव हैं, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। इस तरह के करप्ट प्रिंसिपल हो या कोई भी बड़े ओहदे पर हो, आप उसको रिकमेंड करेंगे कि गेट आउट, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया, आपने ये बात मुझसे कही। मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल करूंगा और इस बात का यकीन दिलाते हैं कि अगर किसी भी किस्म की इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस हमें मिलती हैं और हमारी तहकीक और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो चीज़ें प्रूव होती हैं, तो हम इस तरह से स्पेयर नहीं करेंगे। डेफिनेटली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज के मुताबिक लाएअमल होगा उसके मुताबिक अमल किया जाएगा।
अच्छा, हमारी कल्प्रिट्स को जो है मतलब हम तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन इसके लिए पहले तहकीक की और इंक्वायरी की बड़ी जरूरत है, जो आपने बात की है, और उसके मुताबिक फिर इंशाल्लाह अमल होगा और देखा जाएगा कि इसमें कितनी सदाकत है और मामला की नोयत क्या है। और तमाम चीजें नहीं, मैं सॉरी, आपने मुझे इन्फॉर्म किया है, सॉरी फॉर इंटरप्ट डीजी साहब, सॉरी कता कलामी के लिए बात है। सारी चीजें आपको व्हाट्सएप हो गई हैं, पूरे नशरियाती इदारे छाप रहे हैं, इस वक्त भी एक बड़े नशरियाती इदारे पर आप लाइव हैं, और हमें खुशी है कि जब बाला अफसरान आके चीजों को ऑन करते हैं, हम निशानदेही करते हैं और फुल फोर्स पर आप लोग एक्शन लेते हैं। गालबन आपकी रिकमेंडेशन से ये आते हैं, आप पर उंगलियां उठ रही हैं कि हिस्सा ऊपर तक जाता है। देखिए ये मेरी रिकमेंडेशन तो खैर नहीं होती, प्रिंसिपल्स की ये तैनाती और हायर अथॉरिटीज का काम होता है, लेकिन बहरहाल जो इत्तलात हम तक आती हैं उसकी हम इंक्वायरी जरूर करते हैं, और ये प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, अगर इंक्वायरी में कोई बात साबित होती है तो उनको उनकी ओहदों से हटाया भी जाता है और उनके ऊपर बरकरार भी रखा जाता है अगर उनमें सदाकत ना हो। तो ये दोनों पहलुओं से देखा जाता है। यकीनन आपने बेहतर मतलब कुछ ऑब्जर्व करके भेजा होगा, बताया होगा, मैं इंशाल्लाह देखूंगा और उसके बाद जो भी फैसला होगा आपको चंद दिनों में नजर आ जाएगा। अरे जबरदस्त, रियली अप्रिशिएट, ये पूरी कौम आपको फिर अप्रिशिएट करेगी और मैं खुद टीवी पर बैठ के अप्रिशिएट करूंगा आपको। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये भी एक आखिरी मेरा सवाल ले लें, चूंकि सिंध में तालीम फ्री है, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं हैं, तो जो चार्जेस ले रहे हैं गालबन या लेने के ख्वाहिशमंद हैं, अभी उस लाइन में लगे हैं, उनके लिए कैफरे किरदार तक कोई सजा, कोई ऐलान भी तो करते जाना डीजी साहब। मैं जनाब डे 1 से ये ऐलान क्या नोटिफाई कर रहा हूँ, नोटिफिकेशंस मैंने इशू किए हुए हैं कि जनाब इस तरह की कोई भी एक्टिविटी तालीमी इदारों में नहीं होगी, कोई पैसों का लेन देन किसी भी अमल में इन्वॉल्व नहीं है और ये काम करने वाले को सख्त सजा दी जाएगी। अब मेरे ऑर्डर्स तो इशू हो गए हैं, बाकी जिम्मेदारी वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं, ओहदेदार हैं, सॉरी फॉर इंटरप्ट डीजी साहब, सॉरी, एक आपको और इन्फॉर्मेशन दूं, एक और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है ना, वो सारा वो जो मवाद है इकट्ठा करके हम तक पहुंचाती है, फिर हम आप तक पहुंचाते हैं। ये भी बताना है हमारे ज़राए का कि ये जो नदीम साहब हैं प्रिंसिपल जोहर डिग्री, ये इतने मतलब इनका नाम है कि ये जब इम्तिहानात आते हैं तो ये अलग क्लासेस मुख्तस करके देते हैं मौसूफ, ये चीटिंग करवाने के भी एक्सपर्ट हैं, ये प्रैक्टिकल के भी पैसे लेते हैं, ये हर तरह से पैसे लेते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन है इनके खिलाफ। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं, मैं बिल्कुल इसकी इंक्वायरी करवा के और फिर उसके बाद हायर अथॉरिटीज तक अगर ये कोई बात पहुंचती है, आप बेफिक्र हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं या हम किसी चीज को नोटिस नहीं लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नोटिस लेते हैं बिल्कुल और उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई भी करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डीजी साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने आके मौक़िफ़ दिया, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और डीजी एजुकेशन सिंध हमारे साथ मौजूद थे और हमने निशानदेही की कि हमारे आने वाले फ्यूचर से, तलबा तालबात से, बच्चों से क्यों लिए जा रहे हैं भाई पैसे, जबकि हुकूमत सिंध की पॉलिसी है तालीम फ्री है। तो फिर प्रिंसिपल नदीम साहब आप क्यों 500, 1000 और गालबन वीडियो मैंने डीजी साहब को भेजी हैं, आप एक थैला रख के बैठते हैं और मासूम बच्चों से कहते हैं लाएं आपको फिर मिलेगी। तो इस तरह कोई भी निज़ाम सिंध में नहीं चलेगा। हमारा काम था निशानदेही करना, हमने कर दी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद और सुबह सवेरे में हाजिर खिदमत है। हमारे साथ उमैर भाई भी मौजूद हैं और उमैर भाई कराची वालों को अच्छे अच्छे खाने खिलाते हैं, उनको खौसा खिलाते हैं, क्या उनको गोलगप्पे और गोले गंडे भी खिलाते हैं और क्या क्या खिलाते हैं। और खिलाने से अलावा आप और क्या क्या करते हैं और आपकी क्या क्या मसरूफियात हैं, उस पर भी बात करेंगे उमैर। और क्या करते हैं, एक तो हो गया आपका पैशन, अब पैशन को हम थोड़ी देर रखते हैं साइड पर। कितने बहन भाई हैं, क्या करते हैं और मसरूफियात और क्या? हम लोग 4 बहन भाई हैं और 2 बहनें तो मेरी शादीशुदा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो तो कुछ भी नहीं करती हैं, वो तो बस घर संभालती हैं। ये बहुत बड़ी ड्यूटी है भाई, कुछ भी नहीं करती क्यों कहा आपने? घर संभालना बहुत बड़ा काम है। ये तो
हाँ। नेचुरली मसला है ना, तो घर तो संभालना ही है, कोई भी लेडीज हो। जी बिल्कुल। और मेरा दूसरा भाई है, वो ज़रा शोरूम का काम, गाड़ियों का काम करता है, अच्छा, ज़बरदस्त। क्योंकि उसको जो है इस फील्ड के अंदर कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। सही। मेरे वालिद साहब और मैं जो है वो इस बिजनेस को मैंने अपने आगे बढ़ाया, और इंशाल्लाह और आगे बढ़ाते जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी आपका एक आउटलेट है कराची में? जी। अच्छा, क्या प्लानिंग से, कितना बड़ा कारोबार करना है? और दूसरा ये कि एक ये भी बताते जाएं, बड़ा टेक्निकल सवाल आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारे मेमन कम्युनिटी से बड़ा ताल्लुक़ है मेरा, छोटे से वो बड़े, चाहे वो WMO वाले हों, चाहे वो MLF वाले हों, आपकी जितनी वासावाड़ से लेके जैतपुर, बांटवा, सबसे है। हमारी बहुत ऐसा सी क्या जमात है आप में, आपके लोगों में, कि कारोबार में बड़ी बरकत है मेमनों के माशाल्लाह? देखिए, एक तो सबसे पहले जो है, जो वली है ना, वलियों की दुआएं हमारे ऊपर, हाँ। कि जो गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला ने जो हमारे को दुआ दी थी कि मेमन जो है कारोबार में भी आगे होंगे, अच्छा। खूबसूरती में भी आगे होंगे, माशाल्लाह। और इनके जो खानदान वगैरह जो है वो सारी चीज़ें, हसब नसब भी आगे हो गए जी, हैं। क्योंकि जब हिजरत की थी ना इंडिया से, हाँ। जब मुसलमानों ने हिजरत की थी और ये जरा मामला चले थे, तो ये सारे हिंदू थे, मेमन लोग सारे हिंदू थे। तो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जो है ना, इन्होंने कहा था कि आप मुसलमान हो जाओ, तो उन्होंने बोला हमें क्या फ़ायदा होगा, तो उन्होंने 3 दुआएं दी थी। तो आज ये दुआएं रंग ला रही हैं, और मेमन जो है वो कम्युनिटी बिजनेस वगैरह में जो सबसे आगे है। तो यानी आप इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं? बिल्कुल बिलीव करता हूँ तो कोई- कि ये जो तो आपने अल्लाह दुआ- से मिला और वो दुआ दे। ये तो आपने दुआ बताई ना, कुछ वो टेक्निक्स भी तो बताएं, जिस तरह दुनियावी दूसरे लोग कोई भी टेक्निक। मुस्तफीद हों। ऐसा आप क्या करते हैं कि आपके कारोबार बहुत कम होता है कि मेमन लॉस कर गया, हर कारोबार मेमन हाथ डालेगा, कारोबार चमक जाएगा? देखिए, ये तो बड़ी नसीब की बात है, कारोबार ना मेमनों के हाथ में है, ना किसी और के हाथ में है, ये देने वाली रब की ज़ात है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अपनी माँ की दुआ लेके रात को सुबह निकले, तो मैं तो नहीं बोलता हूँ कि आपको नुकसान हो जाए। क्या ज़बरदस्त, बात। इतनी अच्छी बात है। और ये मेरे ख्याल से अच्छा, इस वक्त बड़ी एक अच्छी सी एरोमा फैली हुई है पूरे सेट के ऊपर। मैं ये आपको बताऊं, क्योंकि उमैर जो है वो सुबह सुबह बड़ी अच्छी डिशेस हमारे लिए लेकर आए हैं। तो उमैर से ज़रा डिटेल जानते हैं कि आज सुबह सुबह आपने क्या क्या कुकिंग की है हमारे लिए? ठीक है, मैंने तो सुबह आपके लिए खौसा बनाया अच्छा। सबसे पहले। ज़बरदस्त। ठीक है, क्योंकि गोल गप्पे तो मैंने रात को ही बना लिए रात थे, को बना लिए थे? क्योंकि गोल गप्पे थोड़े से बासी होने चाहिए। अच्छा अगर गोल गप्पे अगर बासी नहीं होंगे तो वो क्रिस्पीपन नहीं आएगा। अच्छा, जी, ये ज़बरदस्त। सारी टेक्निक वाली बात है। हाँ, हाँ ठीक है। बिल्कुल। ये तो यानी कि आज हम यहाँ ये से मैं बड़ी पहली बार सुन रहा हूँ वैसे। खाने पकाने की टेक्निक्स भी जान के आप आप कहीं लोग से उठेंगे। गोल गप्पे लाएं अच्छा। और उसको थोड़ी देर हवा में छोड़ दें, अच्छा, वो ठीक है। क्रिस्पी हो जाएंगे। वो क्रिस्पी नहीं हो, वो नरम हो जाएंगे। सही। ठीक है। अच्छा। अब इसमें भी टेक्निक है कि अगर आप गोल गप्पे लेके आते हैं तो इसको आप जो है ना एयर टाइट में रखें। ठीक है, पकने के बाद जो है 1 से 2 घंटे आपको उसको बासी करने हैं। अच्छा। ठीक है, फिर वो कड़क हो जाएंगे, कड़क करने के बाद जो आप उसको एयर टाइट कर लें, अच्छा या इसको बल्ब के नीचे रख दें। सही। इसको हीट मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे कराची का मौसम जो है वो नमी वाला होता है। हाँ बिल्कुल। लोग ये समझते हैं कि बासी गोलगप्पे बेचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हालांकि वो गोलगप्पे वालों की जो है वो अच्छा, यानी कि गलती बासी नहीं होते हैं, आप। क्योंकि मसला ये होता है कि नमी की वजह से वो थोड़े नरम हो जाते हैं। अच्छा, और ये जो आपने खाओ से जो आप कह रहे हैं, ये जो डिश है ये आपने जो बनाई है, इसकी रेसिपी कुछ ऐसा राज शेयर करें हमारे साथ कि हम घर में भी देखिए, नहीं बना करते, सकें? मैंने देखा नहीं करते, आप घबराते हैं, करेंगे कहते आज? नहीं यार। देखिए, हम करते तो नहीं है, मगर चलो मैं बता देता हाँ। हूँ। ठीक है, मगर ये भी अल्लाह ताला का निज़ाम है कि आप जब कोई चीज़ कुक कर रहे हैं ना, तो टेस्ट जो है वो हाथ के अंदर है, हाँ, वो अल्लाह सबका ताला का different निज़ाम है कि होता अल्लाह है। ताला ने उसको दिया हुआ है। सबका डिफरेंट ठीक है, होता है। आप अपनी वालदा का खा लें, टेस्ट अलग होगा, आप खुद बनाए उसका टेस्ट अलग होगा, आप बिल्कुल। किसी और का खाएं, टेस्ट बिल्कुल अलग। ऐसा। रेसिपी की कोई कमाल नहीं होता है इसके अंदर। अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत बख्शनी है उसको हाथ में दे देता है, किसी को इज्जत दे देता है, किसी को शोहरत दे देता है, बस जबरदस्त। ये बात होती है। जबरदस्त। अच्छा, और लेकिन- आपके लेकिन- आउटलेट पे क्या क्या फेमस है, क्या क्या मौजूद है, ये बताएं ठीक ताकि। है, मेरे पास जो है खौसा जो बड़ा फेमस है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरे कराची के लोग आते हैं खौसा खाने के लिए, अच्छा। क्योंकि ये मेमनी डिश है और ये हर कोई बनाता नहीं है। हाँ, हर जगह नहीं अवेलेबल होती है। अब तो बहुत सी जगहों पे खुल गया है खौसा, ये ठेले पे इधर उधर, मगर मसला ये कि सारी बात जो है डिपेंड जो है टेस्ट पे। सही सही। और चलें। 14 अगस्त के हवाले से भी कुछ हाँ। नया लॉन्च करने जा रहे हैं आप ना? 1 अगस्त को लॉन्च कर रहा हूँ, और 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक 14% डिस्काउंट है मेरे पास। अरे वाह भाई, वाह, वाह, वाह। जबरदस्त। जश्न ये आज़ादी की खुशी में। जश्न आज़ादी की खुशी जी। में। चलें चलें जी, जबरदस्त। जश्न आज़ादी की खुशी में और भी बहुत सारे डिस्काउंट अभी हम आपको कार्ड दिखा देते हैं कि आज़ादी ऑफर लिखा हुआ है उसके अंदर, 1 जबरदस्त। अगस्त से लेके 14 अगस्त तक। चलें जी, जबरदस्त। उमैर से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। और उमैर जैसे बहुत सारे लोग जश्न आज़ादी की खुशी में वो डिस्काउंट देते हैं, वो खुशी मनाते हैं, और बिल्कुल मनानी चाहिए। आज़ादी एक नेमत है,
یہ ملک ہمیں بہت ساری قربانیوں کے بعد ملا ہے بالکل۔ اور ابھی بھی ہم نے ریسنٹلی بھی بھارت کو بڑے چنے چبوا دیے ہیں اور ہمیں فخر ہے ہمارے اداروں پر کہ وہ ہر محاذ کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ قادر بھائی، اب آپ نے تو مسئلوں کا انبار بتا دیا، اب مسئلوں سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں۔ اور بھی کہتے ہیں نا دنیا میں اور بھی کئی بستیاں بستی ہیں، دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے غالب بتانے کے لیے، بولنے کے لیے۔ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا جے آئی میں؟ مجھے جماعت اسلامی یوتھ میں تقریباً کوئی 25 سال ہو گئے، جسے میں جماعت اسلامی سے ریلیٹیو ہوں، اور جب سے ریلیٹیو ہوں ہم نے صرف دھرنے ہی دیے ہیں، مظاہرے کیے ہیں اور کراچی کی حقوق کی بات کی ہے۔ دیکھیں آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسٹیل ٹاؤن میں 1.5 سال سے گیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، گیس بند کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹیل ٹاؤن اور گلشن حدید میں پانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹیل ٹاؤن اور گلشن حدید کے لوگوں کو نکالا گیا ہے، امپلائیوں کو جن کے 20-20 لاکھ روپے واجبات رہتے ہیں وہ انہیں واپسی نہیں کیے جا رہے، نہیں دیے جا رہے۔ اس کے معاملے میں ہم نے ریلوے ٹریک بند کیا، 12 گھنٹے ریلوے ٹریک بند کیا، جس میں ساری پارٹیاں سب ایک پیج پر تھی۔ سی ایم صاحب نے رابطہ کیا، ٹھیک ہے، جس میں ڈی سی صاحب بھی آئے تھے۔ سی ایم صاحب نے رابطہ کیا، ہم نے ریلوے ٹریک کھول دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو 1 مہینے کے اندر اسٹیل مل کے مزدوروں کے مسائل حل کروں گا، مگر وہ آج تک نہیں کر سکا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں انسان کو سب سے پہلے ضرورت کی چیز جو ہے نا وہ اس کی گیس، پانی، بجلی، روزگار، ٹھیک ہے۔ آج جب بچہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کی ماں یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ میرے بچے کو واپسی سلامتی لیا۔ اگر وہ گولی سے بچتا ہے، ڈکیتوں سے بچتا ہے تو ڈمپر کے نیچے آتا ہے، اور اگر وہ ڈمپر کے نیچے سے بچتا ہے تو اسے ٹینشنیں کھا جاتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ منشیات کے کتنا شراب بڑھ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کل ہر بندہ ٹینشن میں، پہلے کیا ٹائم الگ تھا، اب کا ٹائم الگ ہے۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، جب سے حکومت آئی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ آٹا، چینی، تیل، پیٹرول سمیت ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی کہ لوگ افورڈیبل نہیں ہیں۔ 30,000 میں آپ گھر نہیں چلا سکتے، آپ کچھ بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا 1 کمرے کا گھر ہے تو 10,000 آپ کا رینٹ ہے، 15,000 آپ کو کے الیکٹرک گفٹ دے گا، 5,000 آپ کو جو ہے نا گیس والے دیں گے، تو آپ پھر کھائیں گے کیا؟ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ چوریاں ڈکیتیاں کر رہے ہیں، لوگ منشیات کی طرف جا رہے ہیں۔ کراچی کو برباد کرنے والے کون، یہ آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا۔ میں یہ نہیں کہتا تھا کہ کراچی میں کام کیا ہوا ہے۔ روڈ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، آپ بھی روڈوں پہ گھومتے، میں بھی گھومتا ہوں گاڑیوں میں، صحیح۔ پانی کے معاملات، ٹھیک ہے، بجلی کے معاملات، گیس کے معاملات، روزگار کے معاملات، جو بندہ سیٹل ہے وہ پیسے والا ہے۔ وہ جو مقامی جو علاقے کا ایم پی اے ہوتا ہے، جی، پھر اس ایم پی اے کے نیچے آتا ہے چیئرمین، جی، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ صرف بٹورنے میں مصروف ہیں۔ نہیں تو پھر وہ عوام کے پاس ووٹ لینے نہیں آئیں گے؟ نہیں، عوام کے پاس ووٹ لینے آئیں گے، مگر ہماری عوام کا بھی قصور ہے۔ جب انہیں 5,000 کا ہر نوٹ دکھایا جاتا تھا تو وہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ 80% ایسے ہی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے کسی دن ٹائم دیں، میں آپ کو، آپ میرے علاقے میں آئیں، آپ حالات دیکھیں، آپ توبے نکالیں گے۔ آپ بولیں گے فلسطین میں تو صرف مارا جا رہا ہے، یہاں تو زندوں کو جلایا جا رہا ہے۔ مطلب جلانے کا مقصد ہے اتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ صرف 1 دن آئیں، آپ مجھے سلام میں پیش کریں گے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ وہ پرٹیکولر کیا نام ہے کالونی کا، ایریا کا؟ اسٹیل ٹاؤن نام ہے۔ اسٹیل ٹاؤن، یہ تو بڑا علاقہ ہے، پرانا بڑا علاقہ ہے، تو آج گارڈن۔ آپ دیکھ لیں، حال دیکھ لیں۔ اسٹیل مل کی کالونی ہے اسٹیل ٹاؤن۔ اچھا۔ میں نے آپ کو مثال دیا، بات بولی کہ 20,000 لوگوں کو نکال دیا گیا، ٹھیک ہے۔ جو رہ گئے ہیں انہیں کبھی بجلی کاٹ دی جاتی ہے، گیس تو 1.5 سال سے ہے نہیں۔ اچھا، میں اب جا کے ان کا موقف سمجھاؤں بس، یہ وہ اسٹیل مل غرق ہو گئی تو اب جو وہ لوگ ہیں ان کو بھی کہنا ہے بائے بائے، آپ یہاں سے جائیں تو یہ زمین ہم اپنے یوز میں لے آتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، ایسا ہی ہے۔ اچھا، وہ جو مکین ہے وہ جانے کو تیار نہیں ہے؟ نہیں جانے تو کے لیے کیوں نہیں ہے وہ تیار؟ وہ تو ٹیمپریری رہنے آئے تھے نا وہاں، ان کا تو گھر نہیں ہے یہ، تو پھر کیوں بیٹھے؟ میں جواب دیتا ہوں۔ جی، انہوں نے جو 30 سال اسٹیل مل میں دیا یا ان کے بڑوں نے دیا، ان کے واجبات بھی تو بنتے ہیں۔ 30 20 لاکھ روپے واجبات وہ دیں، واجبات وہ جانے کے لیے تیار ہیں، واجبات دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ ایک سی او اسٹیل مل کا، کیا نام ہے ان سی او کا جو آپ بار بار اسلام نام ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ ایک سی او سی ایم پر باری ہے، اچھا۔ وہ ڈی سی او پر۔ اگر آپ مجھے پہلے بتاتے، آپ یہاں آ رہے تھے تو ہم سی او صاحب کو لائن پہ لے لیتے،
वो बताते कि भाई इशू क्या है, मसला क्या है। मैं इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में जब मैं आऊँगा। क्योंकि हम वन साइडेड शो नहीं करते, ठीक है। हम दो तरफा मौक़िफ़ लेते हैं। ये हमारी आइनी और सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है कि हम दो तरफा बात करते हैं। हम वन साइडेड पर बिलीव नहीं करते। हमारी टीम ज़रूर जाएगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। फिर जिस तरह हमने डीजी साहब को लाइन पे लिया और उससे पहले हमने पूरा डेटा इकट्ठा किया, फिर डीजी साहब को कहा कि सर ये हालात हैं, ये लाइव वहाँ के मनाजिर हैं, अब इस पे आप क्या कहेंगे, ज़रा आप आ जाएं हमारे टीवी पर और हमारे मुल्क के अवाम को लाइव आके सूरत हाल से आगाह करें। गालबन आज 26 जुलाई है। 26 जुलाई हमें याद दिलाती है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की आज सालगिरह मनाई जा रही है और आप 70 बरस के हो गए। आप अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आपके जो कारनामे हैं इस मुल्क के लिए वो भी किसी ढके छुपे नहीं हैं। आपने इस अवाम को 17th अमेंडमेंट दी, 18th अमेंडमेंट दे के आपने सूबों को खुद मुख्तार किया। आपकी बदौलत हुकूक़ बलूचिस्तान पैकेज का आगाज़ हुआ। आपने गरीब ख़वातीन को लैंड दी, ज़मीन दी। तो बहुत सारे आपकी इस तरह के आइनी आपके मार्के हैं जो याद किए जा रहे हैं। और गालबन इस तरह के जो लोग हैं जो आप जिस तरह मनसब पर बैठते हैं, तो फिर वो जो कानून साजी करते हैं वो ऐसी होती है जिसमें आम आदमी का भला होता है, आम आदमी का फ़ायदा होता है। तो आम आदमी के भले के लिए कानून साजी जो भी होगी तो अवाम भी फिर आपको सर आँखों पर बिठाएगी। और उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गालबन उमैर के बाद हमें दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। उमैर, आप फूड एक्सपर्ट हैं जी, अच्छे अच्छे लजीज डिशेस बनाते हैं, ये आपके घर में बनते हैं, मेकिंग करते हैं आप। फीडबैक क्या आता है? कभी ऐसा हुआ कि यार अच्छा नहीं बना, देखें, कुछ कभी- गलत चला गया, किसी का कभी पेट खराब हो गया? खाने की चीज़ें कभी बिगड़ भी सकती है। हाँ सही है, कितना बड़ा एक्सपर्ट हो। हाँ। अब वो मसला ये होता है, कभी जल जाता है, कभी नमक थोड़ा ज़्यादा चल जाता है, थोड़ी मिर्ची ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि हम लोग जो है वो कमर्शियल बनाने वाले हैं। अभी जो घर के अंदर बनता है थोड़ा थोड़ा, तो उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा होता है और कमर्शियल में बहुत ज़्यादा होता है। हमें उसका हिसाब किताब पता होता है, घर का नहीं पता होता है। तो इस वजह से थोड़ा नमक मिर्ची के अंदर अब एक बड़ा एक तगड़ा और तीखा सवाल आपसे करने जा रहा हूँ, क्योंकि हर तरह के लोग बसते हैं इस दुनिया में, इस शहर में, हर जगह पे। कभी किसी ने फटाकी आके ये क्या खिला दिया मुझे, प्लेट उठा के फेंकी? बहुत से लोग आते हैं क्योंकि हमारा काम है, क्योंकि हमारे पास हज़ारों किस्म के लोग आते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं उनको? बहुत ज़्यादा गंदा ट्रीट, गालम गलोच भी हो जाती है, क्योंकि हमें तो हम कस्टमर हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो हमारी रोज़ी है, तो हम उसे अच्छा ही ट्रीट करते हैं। मगर बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि कोई उमर का मीटर भी शार्ट हो जाता है। अब क्या करें, देखिए एक खुला एनवायरनमेंट है, अब गाड़ियाँ भी चल रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, मक्खियाँ भी आ रही हैं, अपना कीड़े मकोड़े भी आते हैं, कभी गिर जाता है खाने में। तो अब लोग बोलते हैं कि आपने इसमें डाल दिया। यार जब मेरी कैसे? हम कैसे डालेंगे, हम अपना काम क्यों खराब सही करेंगे? बात है। इस वजह से जो है थोड़ा चलता है। अच्छा, फूड हो जाता है। इंस्पेक्शन टीम कभी आई है आपकी? बहुत दफ़ा आई है, देखती हैं हमारे पास। ऐसे तो नहीं है वो आते हैं पैसे लेके चले जाते हैं। देखिए, अब आपको पता है कि सारी दुनिया क्या कर रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि अब वो आती हैं, चेक वगैरह करती हैं, मगर निज़ाम जो है सही तरीके से चलता नहीं है। क्योंकि सही तरीके से निज़ाम चले तो मैं बोलता हूँ कि कोई भी दुकान वाला या कोई भी फूड वाला इस तरीके से ना चले। लेकिन वैसे खैर मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैं इनकी जो आउटलेट है मेमन बाइट, वहाँ मैं जा चुकी हूँ। वहाँ बहुत सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत साफ़ सुथरी जगह है, और जो चीज़ें उस वक्त बन रही होती हैं, चाहे लाइव बन रही हों चाहे वो बनी हुई हों पहले से, बहुत अच्छी कवर अप हुई हुई। और मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं तो काफ़ी दफ़ा आपकी शॉप पर आई हूँ। भाई ये ऐसा कि हो कभी सकता मक्खी है मिली हो क्योंकि जो जगह है बड़ी खुली जगह, हाँ। ठीक है ना, ये असल में वो एनवायरनमेंट नहीं है जैसे आप रेस्टोरेंट में आए। एक मेरी एक छोटी सी करप्शन शॉप करते हैं, करप्शन, किस चोरी डंडी मारते हैं। नहीं, अल्लाह ना करे, खाने पीने में जिसने डंडी मारी तो आप समझ ले वो बरकत ही उड़ गई। सही 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 सही। आप अच्छी से अच्छी चीज खिलाएं, साफ सुथरी, आपका ईमान अच्छा होना चाहिए, अल्लाह ताला रोजी बहुत अच्छा, अच्छी बाज़ देता है। दफा सीजन भी कुछ ऐसा होता है ना, बारिशों के सीजन में तो नहीं तो इतनी पैसे कहाँ से मक्खियाँ होती बचेंगे? हैं। महंगाई इतनी है। सर, मैंने आप- मिसाल के तौर पे एक सर- अच्छा ऑयल हमें लीटर मिलता है जी। 1000 रुपए का, 800 का।
और हल्का वाला मिलता है 400-500 का, तो हम तो वो 400-500 डालेंगे ना, नहीं पैसे भी तो क्यों बचाने क्यों हैं ना। डालेंगे सर? मैं जब 1,000 रुपए की चीज बेच रहा हूँ, हाँ, ठीक है, अब मैं 1,000 रुपए की चीज बेच रहा हूँ, क्यों मैं 400 रुपए वाला डालूंगा? नहीं तो आप बोलेंगे मेरे पास 2,000 बचे, पैसे ज्यादा बचा लूं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। एक रेशो है एक, ठीक है, आप सारी दुनिया घूमते हैं, दुनिया के अंदर खाना कितने का मिलता है, कितने का नहीं अभी मिलता इस तरह है। के तगड़े सवाल करेंगे ना, ये जो फूड वाले ये क्या क्या मिलावटें करते हैं, कैसे मसाले इस्तेमाल करते हैं, कैसा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, मुदर सेहत चीजें तो नहीं खिलाते हमें ये। एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन। ब्रेक के बाद सर खुश आमदीद, और इस ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुर्रज़ाक बाजवा साहब ने। बाजवा साहब खुश आमदीद कहेंगे सुबह से। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। कराची में ट्रैफिक का बड़ा बुरा हाल है, और उस ट्रैफिक में लाइव टेलीविज़न पे पहुंचना फिर एक बड़ा चैलेंज है। और इसके साथ साथ मैं एक अप्रिसिएशन भी दूंगा SSP सखर अज़हर ख़ान को और DSP फनोहाकिल डॉक्टर मूसा साहब को। गालबन वहाँ मेरी फैमिली है, वहाँ मेरे भाई रहते हैं, मेरी वालदा, उन पर कुछ शरपसंदों ने हमला किया, जिस पर पुलिस फौरी एक्शन में आई और जो मुल्ज़मान हैं वो गिरफ़्तार हैं और उन पर FIR भी लॉन्च की जा रही है। तो सर एक मरतबा फिर से लाइव शो से मैंने आपको मुबारकबाद दी है कि आप लोग बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, क्योंकि पुलिस पर बड़े इल्ज़ामात होते हैं कि नीचे से सेटिंगें हो जाती हैं, पैसे दे दिला के, लेकिन ऐसे अफसरान भी मौजूद हैं जो कि फ़ौरन एक्शन लेते हैं। और फिर जो वो एक कांस्टेबल जो काली भेड़ है गालबन हिस्न मंसूर, उस वो मेन जो सारी इसकी शय पर ये सब कुछ हुआ है, तो उसको भी कैफरे किरदार तक आपने पहुँचाने में जो काम किया है, तो रियली अप्रिशिएट। और चूँकि अप्रिसिएशन तो फिर बनती है जब आप अच्छा काम करते हैं। रज़ाक बाजवा साहब 70 साल के हो गए आज सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब, किन अल्फाज में याद करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले विनस टीवी का, और ख़ास तौर पर आप का साजिद साहब के आपने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी बड़ा इवेंट होता है आप बड़ी इज़्ज़त और एहतराम देते हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं पूरे पाकिस्तान के जियालों को, आवाम को, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की 70वीं जो सालगिरह है उनके जन्मदिन पर सबको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए। देखना यह है कि जी देखें, जहाँ आसिफ अली जरदारी साहब इस मुल्क के 2 बार प्रेसिडेंट बने, एक तो ये बड़ा एज़ाज़ है उनके लिए, शायद कोई और नहीं बना आज तक 2 बार सदर। और फिर एक एज़ाज़ उनको अल्लाह सुब्हान ताला ने ये भी दिया कि वो दुनिया इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म के शौहर भी हुए। वो ज़बरदस्त, ये दूसरी उनके लिए मुबारकबाद। जो तीसरी है, जहाँ तक उनकी खुश नसीबी है, वो तो मैंने आपको बताई कि वो एक साबिक़ वज़ीर आज़म के शौहर और बड़े अल्लाह पाक ने उन्हें इज़्ज़त अता फरमाई। और जहाँ आप देखें कि उसके साथ साथ उन्हें जो उन्होंने मुसीबतें झेली, जो परेशानियाँ झेली, वो भी पाकिस्तान की आवाम, क्या दुनिया भर की आवाम जानती है कि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा सियासतदान हो जिसने 12 साल कंटिन्यू कराची सेंट्रल जेल में गुजारे, और उस आसिफ अली जरदारी ने गुजारे जिसकी शरीक हयात, जिसकी अहलिया, जिसकी बीवी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। क्या बात है। और आप देखें कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का से शादी के बावजूद उन पर इतनी सख्तियाँ हुई और उन्हें इतना दबाने की कोशिश की गई कि ये अपने कास्ट से हटे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से। आप देखें कि जहाँ उन्हें बहुत सारी अल्लाह सुब्हान ताला ने इज़्ज़त बख्शी, सहूलतें बख्शी, सख्तियाँ भी, और उसने 12 सालों में ना कोई माफ़ीनामा दिया, ना कोई समझौता किया, ना हुकूमत से कंप्रोमाइज़ किए, ना ही कभी बकरे का गोश्त मांगा, ना ही कभी सहूलतें मांगी जेल में। मुझे वो एक वीडियो आज भी पड़ी है देखने वालों के लिए, मुझे याद है, जिस पे अदी फरियाल तालपुर साहिबा और सिंध के सदर निसार खोरो वो खून में लथपथ एक आसिफ अली जरदारी का जो कमीज़ है वो लेकर एहतजाज कर रहे हैं कि उन पर इतना तशद्दुद किया जा रहा है। जी, वो देखिए जेल में तो जब ज़ाहिर जब
मुखालिफ गवर्नमेंटें हों और अपोजिशन में आप हों और परेशान, जब आपको तोड़ा जाए, जब आपको झुकाया जाए, जब आप पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते, ये सारी चीज़ें। फिर आप देखें कि आसिफ अली जरदारी जिसकी अहलिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, मैं बार बार याद करवा रहा हूँ लोगों को ताकि पता चले, उनके तीनों औलादें जेल में हुई, यानी जरदारी साहब कैद खाने में थे, बताएं, जेल में जिकड़े हुए थे। और आप देखें कि हम लोग उनकी सहूलियात को, उनको जो अल्लाह सुब्हान ताला ने इज़्ज़त बख्शी उसका तो जिक्र करते हैं, हैरान होते हैं कि ये किसी और को। आप ये भी तो देखें ना, आज का कोई मुझे सियासतदान दिखा दे ऐसा, आसिफ अली जरदारी मर्द हुर जो है, अब तो सियासत का इमाम का खिताब भी दे दिया गया है उन्हें कि वो सियासत के इमाम भी हैं। तो आप देखें कि उन्होंने कभी झुके नहीं, कभी रोए नहीं, कभी हुकूमत से ये नहीं कहा कि भाई आप हमें रिहाई दे दें, हमसे नरमी बरतें। तो बड़ा बहादुर शख्स है। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालफिन तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर भी इल्ज़ामात लगाते थे, उन्होंने तो बेनज़ीर साहिबा को भी नहीं बख्शा, उन्होंने तो आसिफ क्या इल्ज़ामात की सियासत तो हमारे यहाँ एक राज कर गई है, वो एक समझो कि वो लागू हो गई है, वो लोगों को कुछ नहीं मिलता तो वो बुग़्ज़ करते हैं। नहीं तो वज़राए आज़म का जो हमारे बड़े मनसब पर शख्सियात हैं, जिस तरह आज सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा सदर हैं, लेकिन हमने देखा कि बड़े बड़े वज़राए आज़म जेलों में उन्होंने सर्व किया। आज एक और बड़ा वज़ीर आज़म, फॉर्मर वज़ीर आज़म बानी पीटीआई भी जेल में। सर वो तो रो रहा है कि मुझे निकालो, नहीं तो होना चाहिए, वो तो दुआइयाँ दे रहा है, वो तो मातम कर रहा है कि मुझे निकालो किसी भी तरीके से। वो देखो बात ये जो सियासतदान, मैं खाली आसिफ अली जरदारी साहब की इस मौके पर तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, आप देखें वली ख़ान की, वो भी एक लीडर थे, ANP के सरबराह थे, 28 साल उन्होंने जेल काटी है। आप देखें उनके जो वालिद साहब थे जिसे बाचा खान कहते हैं, उन्होंने 33 साल जेल काटी। ये पाकिस्तान की जेलों की मैं बात कर रहा हूँ, कोई जर्मनी अमेरिका की जेलों की बातें नहीं कर रहा हूँ। आप नेल्सन मंडेला की तो मिसालें देते हैं कि जी 28 साल काटी, अरे बाबा उससे भी ज़्यादा बहादुर हमारे मुल्क में पड़े हुए हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस वतन के लिए अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान। अभी मैं कल पढ़ रहा था, क्योंकि मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, पॉलिटिशियन से छोटा मोटा ताल्लुक़ है, और मैं खुददार सियासतदान जो बहादुर सियासतदान गुजरे उनकी तारीख़ में पढ़ता हूँ कि आप देखें कि सबसे बड़े साहबजादे थे वली ख़ान के असफद यार वली ख़ान, जो आजकल ANP के शायद सरबराह भी हैं, या ये उनके सबसे बड़े साहबजादे थे। वली ख़ान साहब जेल में थे। वली ख़ान ने कोई चोरियां तो नहीं की थी, कोई डकैतियां तो नहीं मारी थी, कोई पाकिस्तान का तोशा खाना तो नहीं लूटा था, कोई उन्होंने कालीने तो नहीं गवर्नमेंट की ले गए थे या बंगलों का। वो असूल पसंद लोग थे ना, सच्चे लोग थे, असूल पसंद लोग थे। उन्हें जो चीज़ अच्छी लगती थी, बेहतर लगती थी मुल्क के लिए, उस पर वो खड़े हो जाते थे। तो आप देखें कि असफद यार वली को दूल्हा बनाकर सेंट्रल जेल ले जाया गया। बताएं, तो यार ये ऐसी मिसालें कहाँ मिलती हैं? ऐसे बहादुर सियासतदान अब कहाँ रह गए? अब तो लोग कंप्रोमाइज करते हैं, अब तो लोग मुआहदे अप्रिशिएट तो करते जाए ना तो, बानी को भी, तो कि वो एक साल से गालबन 2 साल से बैठे हैं। टॉपिक है सदर आसिफ अली जरदारी साहब की बर्थडे का, तो मैं तो उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ। और मैं सियासतदानों से जो जिस तरह हम जैसे छोटे मोटे जो सियासी कारकुन हैं या जिन्होंने आगे जाके पॉलिटिशियन करनी है, मैं उनको पैगाम देता हूँ कि देखिए अगर आपने पॉलिटिशियन में आना है, सियासत करनी है, तो इतना बड़ा दिल भी साथ रखना। ऐसा ना हो कि वो कैदी नंबर 804 की तरह रोना पीटना शुरू कर देना। अच्छा चले, आप जब हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं ना। जमात इस्लामी के साथ भी बैठे हैं, शिकायतों के अंबार लेकर गालबन अब सिंध हुकूमत भी आ गई है। तो अब इनका एक जो बड़ी जो इनकी शिकायत थी वो ये थी कि स्टील टाउन के मकीनों को हिरासा किया जाता है, तंग किया जाता है, हुकूमत वक्त पता नहीं किधर है। सर हुकूमत वक्त आ गई, क्या कहेंगे? देखें ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि स्टील टाउन के साथ इतना जुल्म किया जा रहा है, इतना तो सुतेली माँ के साथ भी नहीं किया जाता। ठीक है, स्टील मिल को तबाह और बर्बाद कर दिया, घर कर दिया गया, जो एशिया की सबसे बड़ी मिल थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाई थी। ठीक है, स्टील मिल के लोगों को वाजिबात नहीं दिए जा रहे, 20 दिन से पानी बंद है, 20 दिन से पानी बंद है।
इसके अलावा बिल 1 यूनिट का 50,000 रुपये भेजा जा रहा है, जिनका 2 महीने का बिल शार्ट होगा उस पर 60,000 रुपये जुर्माना भेजा जाएगा। आप बोलेंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप मंगवा लूँगा। इतना जुल्म, इतना जुल्म। और ये क्यों हो रहा है? जब हमने ये पूछा कि भाई ये आप जो बता रहे हैं अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये क्यों होता है, वजूहात होती हैं, तो गालबन ये पता चला कि वो जो एम्प्लॉइज़ हैं जिनका ताल्लुक स्टील मिल से था, गालबन स्टील मिल तो ख़त्म हो गई। अब वो जो एम्प्लॉइज़ हैं वो घरों पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, हमारी जो वाजिबात हैं वो उनकी आप अदायगी करें, हुकूमत कह रही है वाजिबात नहीं देंगे। अब इस मसले को, इस मुअम्मे को कैसे हल किया जाए? बाजवा साहब कैसे हल किया जाए इसको? साजिद साहब देखें, पाकिस्तान स्टील मिल का जो सहरा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, और तबाही का सहरा एशिया के सबसे बड़े सियासी लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी आवाम को रोज़गार देने के लिए कराची शहर को ऑन करते हुए, कराची शहर को सबसे बड़ा सनअत शहर करार देते हुए उन्होंने एक सबसे बड़ा रोज़गार का एक कारखाना लगाया जिसे पाकिस्तान स्टील मिल कहते हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों को रोज़गार मिला और वो उसने अपना एक बड़ा नाम भी कमाया। स्टील मिल ने रूस की मदद से वो स्टील मिल लगाई गई थी और वो बहुत 7,500-8 हज़ार एकड़ पर वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और उस पर जब तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट थी, जब भी जो हमारी स्टील मिल थी उसकी जो पैदावार बहुत ज़्यादा थी, दुनिया में उसका बहुत बड़ा नाम था। और उसके बाद जब मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट आई, बीच में देखो 10-10, 12-12 साल हमें आउट भी किया गया। ज़िया-उल-हक साहब की गवर्नमेंट थी, ज़िया-उल-हक ने जब इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया तो ज़ाहिर है फिर वो स्टील मिल भी उनके अंडर चले जाती है, जो भी वफाकी हुकूमत बने। तो उसमें वो लूजिंग शुरू हुई होती फिर बीच में 10-12 साल आप परवेज़ मुशर्रफ साहब के देख लें, और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने इत्तेहादी एमकेएम के साथ जो मिल कर के स्टील मिल के साथ जो हुआ सो हुआ। खैर अब मैं उस बातों पे नहीं जाता किसने क्या है, लेकिन अब स्टील मिल जो है वो अपने आखिरी सांसों पर है, इसमें कोई शक नहीं। स्टील मिल के जो मुलाजमीन हैं, जो उसमें जो जिन्हें नौकरियाँ मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ गवर्नमेंटों ने दी, उनका तो कसूर नहीं है। वो घर नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे हैं हम घर से नहीं जाएंगे। नहीं देखिए, आप एक तो रोज़गार आप ले रहे हैं वापस, एक उनसे घर ले रहे हैं। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो किसी को बेघर करने का कभी सोच भी नहीं सकती। तो फिर ये कौन लोग हैं जो लाइट भी इनकी काट देते हैं, इनको तंग करते हैं? और जमात इस्लामी के साहब कह रहे हैं वो रेलवे के CEO हैं और वो CM को भी कुछ नहीं समझते। रेलवे की नहीं, स्टील मिल के। अच्छा, स्टील मिल के CEO। देखिए मैं आपको स्टील मिल की सूरत हाल बताऊँ। वो फेडरल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, वो उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, उसको फेडरल कैबिनेट उसको हेड करती है। आज जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी अपनी स्टील मिलें तो बहुत खूबसूरत चल रही हैं। जो इत्तफाक स्टील मिलें हैं पंजाब में वो तो बहुत खूबसूरत चल रही हैं। मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस है, आपके पास बड़ा तजर्बा है स्टील मिलें चलाने का, सरिया बनाने का या लोहा बनाने का, तो भाई आप ही इसे गोद ले लें। स्टील मिल तो चलाएं, शहीद भुट्टो का दिया हुआ तोहफा इसे क्यों बंद करें। और अभी हमारे चीफ मिनिस्टर ने और सिंध गवर्नमेंट ने हालिया पिछले दिनों में ये फैसला किया है कि हम रूस से मिलकर इस स्टील मिल को दोबारा पैरों पर खड़ा करेंगे। दोबारा खड़ा हो सकता है ये? जी हो, क्यों नहीं हो सकता? कहते हैं कि ये मुर्दा हो गया, खत्म हो गया। नहीं, ये तो वो लोग कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो स्टील मिल की जिन ज़मीनों पर जिनकी नज़र है, जो उसका स्क्रैप है वो बेचना चाहते हैं उसकी ज़मीन। आप देखें तो सही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विज़न, ये स्टील मिल की खाली आप प्रॉपर्टी देख लें, उसकी जो लैंड देख लें, उसकी जो ज़मीन देख लें, गारो पता नहीं ठट्ठा तक इसकी ज़मीनें हैं। बताएं तो पाकिस्तान का ये जो कर्जा मर्जा, ये तो खाली हमारी स्टील मिल की ज़मीन बेचकर उतारा जा सकता है। क्या बात है। चले कंटिन्यू। ये बहुत बड़ा लीडर था। कंटिन्यू करते हैं बाजवा साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और चूँकि एक हमारे साथ फूड एक्सपर्ट भी मौजूद हैं और चूँकि सेगमेंट वाइज हम चलते हैं, इनके इजाज़त का वक्त भी है, लेकिन इजाज़त से पहले ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम इनसे
तगड़े सवाल ना करें, तीखे सवाल ना करें। ये जो फूड एक्सपर्ट होते हैं, खाना बनाने वाले जो लोग होते हैं, जिनका कारोबार इसी से चलता है, ये मिलावट बड़ी करते हैं। सब नहीं, मैं सबका नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारों की शिकायत आती है ये मिलावट करते हैं, ये ऐसे मसाले इस्तेमाल करते हैं, नाकिस मसाले, नाकिस ऑयल इस्तेमाल करते हैं, फिर जिससे आवाम मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं। आ गया मैं आपकी तरफ, आप भी ऐसा करते हैं? सर देखिए, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो आप पहले देख लें मिर्ची के अंदर आप देखें कि अब एक जगह मिल रही है 600 रुपये किलो। तीन इकसाम की मिर्ची है, एक है 1500, एक है सबसे लीस्ट है 600। भाई सबसे हल्की वाली दे दो। ऐसा होता है, आप भी करते हैं? सर होता है। आप देखें, एक चीज़ हमें कॉस्टली पड़ती है तो हमें लेनी पड़ती है, ठीक है, मगर ऐसी भी क्वालिटी ना होनी चाहिए जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो। क्योंकि आप देखें, मिर्ची लेने जाएं, कोई काली मिर्च लेने जाएं, तो पहले ही इतनी मिलावट हुई हुई, हम क्या करें। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं उसका अल्लाह जाने और वो जाने जी, और आपने वो मिलावट शुदा, वो सस्ती, गैर मयारी, नहीं, थकी हुई चीज़ ली और गोलगप्पों में डाल दी। सर हो गया इतना सत्यानाश। ऐसा भी नहीं हो सकता अच्छा, है नहीं हो सर कि अब हम पहली बात ये है कि जो आप खाओ ना वो कस्टमर को खिलाओ। क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है, हाँ। तो इसी में बरकत है, अगर इसी में अल्लाह ऐसा- ताला जो है वो बहुत अच्छा रिस्क देता है आपको। ऐसा जहाँ हो रहा होता है, हमने ये भी देखा है ना कि बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स थे जो कि बंद हो गए हैं। हाँ। क्योंकि जब फूड इंस्पेक्शन वाले वहाँ हमें पहुंचे छोटे- और देखा कि भाई इतनी मिलावट हो रही है, फायदा छोटे बकरे का गोश्त कह के पता नहीं हमें क्या क्या खिलाया है हाँ, इस कराची वालों को, खिलाने वालों ने। तो सवाल तो बनता है ना, बिल्कुल। तो आप क्या क्या खिलाते हैं, कुछ बताएं ना। इंग्रेडिएंट्स आपके कैसे फ्रेश होते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारी चीज़ें फ्रेश ही होती हैं। बाज़ औक़ात जो है वो, अभी इस वक्त गर्मी है, गर्मी के अंदर जो है वो इसको थोड़ा सा संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि गर्मी की वजह से उसमें स्मेल भी हो जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो खाने का आइटम के अंदर कुछ ना कुछ मसले पैदा हो सकते हैं। हम बोले बिल्कुल परफेक्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। नहीं तो उसमें सोडा डाले, केमिकल डाले ना, नहीं उसकी सर, एज बढ़ाएं, एज बढ़ाएं इसको उसकी। इसको और मजीद खराब करने वाली बात है। अच्छा लेकिन सोडा डालने से क्या होगा? ये कितनी अच्छी बात अच्छा, है। जो ना, बच देखिए, जाएगा वो कहाँ जाएगा? सर वो बचता है, मैं फेंक देता हूँ। मुल्ला और लोगों ये- नहीं खिलाएंगे? नहीं। किसको? वो जो काम वाम करते हैं भाई, तू खा सर ले। वो तो खाते रहते हैं। अच्छा। क्योंकि रात को 2 बजे हमारी शॉप बंद होती है, कौन खाएगा। हाँ, लेकिन और आपको ये डाउटफुल हो रहा है कि मैं नहीं फेंकता हूँ, छापा तो मारे आप नहीं हम, मेरे बेफिक्र शॉप पे रहे, आए, वो हमारा काम है। सही है। आप जो तहकीकात करें इसके बाद मुझे लेकिन बताइएगा। ये आप अच्छी भी बात है मुझे- ना, देखिए ये हाँ। एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करते, वरना लोग झूठ सच बहुत सारी बातें बोल देते हैं। क्योंकि सर कि मेरे हम पास जो perfect आइटमें काम होती करते हैं वो 4 से 5 घंटे के बाद नहीं चलती हैं। वो सामने आपको मैंने नूरल बताया। अच्छा, आप सुने ना जी। चूँकि फिर मैंने दूसरे मेहमानों को टाइम देना है, आप हमारे जो लोग हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए भी फूड लाए हैं। जी। ये रात से बना के रख दिया था, नहीं सर, कोई चीज़ रात से बनी हुई है और कोई चीज़ सुबह बनी तो हुई फिर रात वाली तो नहीं खा सकते ना सर? सर जो रात वाली बनी हुई है कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो ख़राब हो जाए। एक दिन मेरी मिसेज ने, क्योंकि मैं बिरयानी का बड़ा शौकीन आदमी हूँ, तो मुझे वो रात वाली बिरयानी सुबह नाश्ते में दे दी। सर, चावल अच्छा, फिर तो- सुन तो ले, मैंने भी देखा वाह 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 वाह, खा ली। उसके बाद फिर मेरा पेट और मैदा। सर चावल तो वैसे ही जो है दूसरे दिन के नहीं खाने चाहिए, नहीं खाने। और फ्रिज पे रखे हुए चावल तो खाने ही नहीं चाहिए। है ना? आप किसी भी डॉक्टर से पूछें कि कितने। तो ये हम खा सकते हैं जी बिल्कुल सर, अगर ये अगर हमारे किसी एम्प्लॉय का, ये टीवी वाले लोग हैं सर, कुछ हो गया तो अल्लाह ना करे आपको। उमर साहब इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। बिल्कुल सर, ये चटनियाँ वगैरह चले, चटनियाँ वगैरह क्या तो चल सकती मैसेज क्या हैं। बिल्कुल, देंगे? बिल्कुल। मैसेज क्या देंगे लोगों को, अहले कराची को क्या मैसेज देंगे कि खाना खाएं, अपना हमारे आउटलेट फूड को बताएं कि खाएं, कहाँ पर है, और और फिर अपना कांटेक्ट नंबर भी बताएं। और फिर जो आपसे लड़ते हैं उनको क्या कहेंगे? सर अभी ये तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। अब बस मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि खाना जो है वो हेल्दी खाएं। ठीक हेल्दी है, खाएं, ठीक है, बिल्कुल। हमारी भी चीज़ें जो है ना, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, हमारी चीज़ें भी मेमन बाइट का खाएं। जी खाने जो है ना जितने भी बाहर के हैं वो सेहत के लिए अच्छे नहीं है। अच्छा। और ये सारी रिफ्रेशमेंट आइटम है, अब क्या कभी आपको कभी खाएं। क्या कभी ये क्या हेल्थ देंगी आपको? सही बात है। ठीक है, खाना हो, फ्रूट हो, बकरे का गोश्त हो, क्या बात रोस्ट है, हो, ये क्या बात ऐसी अपना चीजें आउटलेट हो। तो बताएं कि कहाँ पर है मेमन मेरा बाइट्स तक आउटलेट- कैसे पहुँचे लोग? मेरा आउटलेट है दुराजी कॉलोनी नियर जमाल नूर हॉस्पिटल, शॉपिंग सही। सेंटर, शॉप नंबर 7 है। क्या बात सही। है? और अपना कांटेक्ट नंबर ऑनलाइन सर्विसेज के लिए बताइए। ऑनलाइन सर्विस के लिए 0321248045। और मैं जबरदस्त। अक्सर आता हूँ वहाँ, पूछे किसके पास आता हूँ? जमाल नूर के बराबर में ही फॉर्मर चेयरमैन आबाद आसिफ भाई का घर है।
आसिफ समसम का। जी 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 जी, देखें मैं वहाँ अक्सर आता वो हूँ, हमारी बिरादरी की ही। देखो तो छापा तो पढ़ना है आपके पास, मैं अक्सर उनके पास आता रहता हूँ। और चूंकि जमात इस्लामी के नौजवान हमारे साथ गालबन सर कादर साहब अब शिकवे आपके थोड़े से कम हुए क्योंकि आपके दुख में पीपल्स पार्टी भी शरीक है। ये वफाक का मामला है, वफाक वो कहते हैं ना, उनको भी अल्लाह पाक हिदायत देगा, रहम करेगा आप पर। देखें आप मुझे 5 मिनट दें, मैं आपको दिए, ठीक है दिए। आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात मैंने आपको पहले कही थी, कराची शहर के मसले मसाइल। अभी आपने कहा कि ट्रैफिक का क्या हाल है, आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर नलकों में पानी नहीं आ रहा, टैंकर के थ्रू पानी दिया जा रहा है। तीसरा, हर दिन लाश मिल रही है। चौथा, पूरे डिस्ट्रिक्ट मलीर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। 6 MPA 3 MNA होने के बावजूद फिर आ जाते हैं स्टील मिल पर। स्टील मिल को किसने बर्बाद किया, किसने तबाह किया, वो सबको पता है। क्या पता है, बताएं, फिर बताएं कौन कौन थे वो लोग, किसने तबाह किया, हाँ, किसने बर्बाद किया, सबको पता है। बताएं वो कौन लोग हैं, नाम बताएं। मुझे बात पूरा अच्छा, बात पूरी हाँ, करने दें। हाँ। स्टील टाउन के लोगों के पास 2 साल से गैस नहीं है। ठीक है, कितने साल से? 2 साल। 2 साल से आपके घर में गैस नहीं होगा तो आपको इल्म होगा कि गैस के बगैर कैसे गुजार होता है। स्टील टाउन गुलशन नदीद में 20 दिन से पानी नहीं है। वहाँ का MNA कौन, वहाँ का MPA कौन, ठीक है। जमात इस्लामी ने हमेशा खिदमत की है। स्टील टाउन के लोग मजलूम हैं। लोग कहते हैं कि फ़लस्तीन में जुल्म होता है, मैं कहता हूं कि स्टील टाउन में जुल्म देखें, फ़लस्तीन भूल जाएंगे आप, इतना जुल्म किया जा रहा है। पानी होने के बावजूद भी CEO स्टील मिल पानी नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? उसकी बदमाशी। जब हमने रेलवे ट्रैक बंद किया, आपको डर नहीं लगता? नहीं, हमें डर किसी से नहीं लगता। FIR हो जाती है, होती रहे, दहशतगर्दी पहली दफा नहीं है, हम पे होती रहती हैं। हम जमात इस्लामी वाले हैं, हम 29 दिन सिंध गवर्नमेंट हाउस के बाहर बैठे, अफेयरें होती रहती हैं, उसका कोई इशू नहीं है। हम हक और सच की बात करें। जेल की हवा खाई है? बिल्कुल खाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आया था, बिल्कुल मजा आया था। देखिए बात यहाँ पे ये है कि स्टील टाउन या जिला मलीर में एक यूनिवर्सिटी नहीं, ठीक है, एक हॉस्पिटल नहीं, ठीक है, 6 MPA 3 MNA होने के बावजूद 20 दिन से पानी है। स्टील टाउन के लोगों को नहीं दिया जा रहा। स्टील टाउन गुलशन फेज 1 फेज 2 समेत हमारे इंतजामिया, हमारे लोगों ने, इलाकाई जो तंजीम है उन्होंने मुजाहरा किया, जिसमें मैं खुद भी शरीक था। आप बोलेंगे तो मैं आपको फुटेज भी भेज दूंगा। उससे पहले पीपल पार्टी ने मुजाहरा किया। क्यों? पानी के खिलाफ। अच्छा, ठीक है, जिसमें 5 लोगों को नॉमिनेट किया गया, जिसमें पीपल पार्टी का कोई बंदा नहीं, जो आम खड़े नहीं थे, उन्हें उन पे FIR लॉन्च कर दी। आप SHO का नंबर मैं आपको सेंड करता हूँ, फ़ोन करके पूछ लें, ठीक है। कराची के साथ तो हमेशा सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। आप कौन सी कराची की बात? कराची ने हमें सब कुछ दिया। मैं पठान हूँ, बेसिकली मैं पठान हूँ, इसी कराची में बच्चा पड़ा हुआ, मैंने इसी सिंध ने मुझे सब कुछ दिया। मगर अगर आप अपने आप को मुतमईन कर रहे हैं या मुझे मुतमईन कर रहे हैं तो ये गलत बात है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। चलें बाजवा साहब, क्यों मुतमईन नहीं कर रहे? ये कह रहे हैं हमारे पास तो फ़लस्तीन से बड़े बुरे हालात हैं, और आपकी हुकूमत सिंध में, आप बड़े अरसे से गालिबन कराची में मेयर भी आपका, बेचारों के पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस काट के ले गए। मेरे भाई जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है। मैं इल्ज़ामात की सियासत को मुनासिब नहीं समझता हूँ। कराची के 10 टाउन इनके हैं, आधा कराची इनके पास है, जो जिनके पास वाटर है, पानी है, या लोकल बॉडी में 10 टाउन इनके पास है कराची, और ये आधे कराची इनके पास है। और फिर भी ये कह रहे हैं कि जी हमें वहाँ पानी नहीं मिल रहा। पानी चाहे इनके पास पूरा कराची भी हो तो पानी इनका हक है। ये पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान की आवाम है। जिन लोगों ने भी पानी बंद किया है, मैं उसकी भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। हाँ, अब देखिए, जो स्टील टाउन है या स्टील मिल है, या जो स्टील मिल का क्राउड एरिया है जो उनकी मलकियत है, तो वो ये तो सारा CEO ही देखता है ना। देखिए, वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं है कि जो वो नहीं, कम से कम जो ज़रूरत ज़िंदगी हैं, वो तो पानी है, बिजली है, वो तो रियासत का काम है ना। मैं स्टील टाउन के, स्टील मिल के, या जो भी वहाँ जो इर्द गिर्द के एरियाज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो डिस्ट्रिक्ट मलीर है, जो 100% 100% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, UC नाजिम से लेकर के MNA हमारे 3 हैं वहाँ पर, 6 MPAs हैं, डिप्टी मेयर कराची सलमान बलोच भी मलीर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बताया मैंने। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैं समझता हूँ कि इन्हें एक डेलीगेशन की सूरत में वहाँ के मुंतखब अरकान असम्बली से या डिप्टी मेयर साहब से मिलना चाहिए। अब पानी तो स्टील मिल के अंदर से ही पानी फ़िल्टर होकर पूरे कराची को मिलता है। इनके घर के सामने नहर है पानी की जो पूरे कराची को पानी देती है, और इनको पानी ना मिलना, ये तो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं ख़ुद भी गुजारिश करूँगा, मुझे आज मिलना भी है डिप्टी मेयर साहब से, तो मैं उनसे पूछूंगा कि ये क्या सिलसिला है, वहाँ के लोगों को क्यों पानी,
لیکن پھر سے میں دوبارہ گزارش کروں کہ وہ جو اچھا اسٹیل ویسے ایک مل، معصومانہ سوال انہوں نے کہا تھا تو آپ کی غیر موجودگی میں کہوں، جی بالکل، یہ آپ لوگ قبضہ کر کے میئر شپ لے کے بیٹھ گئے، یہ حق حافظ نعیم کا تھا. نہیں وہ نعیم صاحب کا تو آج بھی صدمہ ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا رتبہ دے دیا ہے. وہ امیر ہے جماعت اسلامی. ہم تو بہت بڑا مطلب جماعت اسلامی کے جو امیر ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ لیکن آپ نے اس امیر کی جماعت کو بھی نہیں چھوڑا، آپ نے دھاندلی کی ہے. جی آپ نے دھاندلی کی ہے، آپ نے لوگوں کو اغوا کیا ہے. نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا. نہیں دیکھیں ان کے ساتھ صاحب کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو دھاندلی کی ہے وہ قیدی نمبر 804 کی ٹیم نے کی ہے. ان کے جو ناظمین تھے وہ پلٹی مار گئے. وہ پہلے ان کو آسرا دیتے رہے، وہ بعد میں جب انہیں جو بہتر انہوں نے فیصلہ کیا، میں تو اسے ان کے فیصلے کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا ہوں، انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. ہم نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا. یہ سامنے بیٹھے ہیں جماعت کے ہمارے دوست بیٹھے، اگر وہ ان کے اتحادی ان کے ساتھ کھڑے رہتے تو میئرشپ ان کا حق ہے. آج اگر جماعت اسلامی اس غم سے باہر آئے، پہلے بھی نعمت اللہ ایڈوکیٹ صاحب رہے ہیں اور سندھ کی اجرک پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے. کس پہ؟ اجرک والی نمبر پلیٹ پر. دیکھیں یہ بہت ہی شدید مجھے افسوس ہو رہا ہے. میں ان تعصب پسند عناصر سے سوال کرتا ہوں کہ جب پنجاب میں وہاں کی نمبر پلیٹ پر کسان کے پھول لگے ہوئے ہیں، جب KPK میں ان کی نمبر پلیٹ پہ درہ خیبر کی ایک بہت خوبصورت فوٹو ہے، اور جب آپ بلوچستان کی نمبر پلیٹ پہ اونٹ لگے ہوئے، کیونکہ وہ ان کے کلچر اور ثقافت ہے، وہ ان کی روایت ہے، وہ ہمیں اتنا خوبصورت لگتی ہیں ان کی نمبر پلیٹیں. تو اگر ہم نمبر پلیٹوں پر اجرک لگاتے ہیں تو یار کیوں؟ یہ سندھ آپ کا ہے، یہ اجرک آپ کی بھی ہے، یہ کسی کوئی خاص طبقے کی نہیں ہے. یہ جو تعصب پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ سندھی اجرک کسی خاص طبقے کی نہیں ہے، یہ سندھ کے رہنے والے سارے حلالی بچوں کی ہے. یہ جو سندھ میں پیدا ہوئے ہیں، جو جن کے سندھ میں قبرستان ہے. ڈیزائن کے ساتھ ساتھ جی وہ جو اجرک کی ڈیزائن ہے، ایک تو اختلاف اجرک تو چلیں، وہ کہتے ہیں نا یہ تو بہانہ ہے. یہ اجرک کا بہانہ ہے، سندھ سے نفرت کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں 1850 روپے ایک موٹر سائیکل والا کیوں دے. یہ ظلم ہے، اس کی میں بھی مذمت کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ فیس نہیں ہونی چاہیے، فری میں دینی چاہیے گورنمنٹ کو. اور اس پر بات چیت چل رہی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اس کو یہ جو خاص طور پہ جو موٹر سائیکل آپ چونکہ سے حکومت کی نمائندگی کریں، اعلان کریں کہ یہ نمبر پلیٹ مفت نہیں. دیکھیں یہ مفت ہیں لوگوں کو. میرے پاس اعلان کا اختیار تو نہیں، وہ تو منسٹر صاحب نہیں، ریکویسٹ کریں نا آپ CM صاحب کو. وہ ریکویسٹ تو میں آپ کے ٹی وی چینل سے کر رہا ہوں. ہاں کریں. میں ساتھ کھڑا ہوں کراچی. جی میں آ رہا ہوں آپ کے. لیکن یہ کہ اس پر اجرک کیوں لگا؟ نہیں لگانی چاہیے، بالکل لگانی چاہیے، لیکن اس پہ سیکورٹی فیچرز بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن یہ اہل کراچی کے لیے کہ ہم پہلے پیسے دے چکے ہیں، دوبارہ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ بات بالکل. اور غالباً یہ اماؤنٹ اربوں روپے بٹوری جائے گی. یہ جو مطالبہ ہے کراچی کی عوام کا کہ ڈبل پیسے نہ لیے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اس سے قبل اب جب عمل درآمد ہونا شروع ہوا ہے قانون پر، میں بھی کراچی کا باسی ہوں، میں بھی کراچی کا بیٹا ہوں. میرا اسکول، کالج، یونیورسٹیاں یا جو بھی آج کی بڑھاپے کی عمر بھی اب ہم کراچی شہر میں گزار رہے ہیں. اسی شہر میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم سندھ کے رہنے والے لوگ ہیں. لیکن یہاں لا قانونیت دیکھیں بہت گزری ہے. یہاں کی نمبر پلیٹوں پہ لوگوں نے اپنی تنظیموں کے نام لکھے ہوتے ہیں، اپنی تنظیموں کے پرچم لگائے ہوئے تھے. کسی نے KMC لکھا ہوتا ہے، کسی نے سندھ پولیس لکھا ہوتا ہے، کسی نے سندھ پولیس لکھا ہوتا ہے، کسی نے چانڈیو لکھا ہوا ہے، کسی نے باجوہ لکھا ہوا. تو یہ دیکھ اب اگر کراچی میں جرائم زیادہ ہوتے ہیں، لوگ مثالیں دی جاتی ہیں کراچی میں موبائل سیف نہیں ہے، ڈکیتیاں چوریاں بہت ہوتی ہیں، تو وہی بائک والے کرتے ہیں جن کی بائک پر نمبر نہیں ہوتا. اب اگر پولیس نے کراچی کی شہریوں سے یہ پہلے انہیں نرمی سے کہا، جب وہ نہیں مانے پھر سختی سے. قانون پر عمل درآمد تو ہمیشہ سختی سے ہوتا ہے. کراچی کے لوگ ساتھ دیں، اپنے نمبر پلیٹوں پہ نمبر پلیٹیں لگائیں گاڑیوں کے، ڈاکومنٹس اپنے پورے رکھیں، موٹر سائیکلیں اپنے نام پہ ٹرانسفر، تو انشاءاللہ قانون پر عمل درآمد کرنا تو ہم سب کا فرض ہے. تو پھر کیوں اعتراض ہے سر؟ دیکھیں اجرک والی نمبر پلیٹ پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے. ہم سندھ میں رہتے ہیں، اجرک والی نمبر پلیٹ ہی ہونی چاہیے، صحیح، جو زبردست، جائز بات ہے. ٹھیک ہے. مگر اس کی آڑ میں 1800 حکومت لے رہی ہے، 5000 جو ہے نا ٹریفک والے جو چلان کر رہے ہیں. 2 دن ایک منٹ مجھے بات کرنے تھے. ٹریفک والے چلان کر رہے ہیں، جس کا دل اس کا چلان نہیں کرے جو خرچہ پانی دے رہا ہے. ٹھیک ہے،
हम अजरक के खिलाफ नहीं हैं, हम गैर कानूनी जो अमल हो रहा है उसके खिलाफ हैं, ठीक है, उसके खिलाफ हैं। अब इन्होंने कहा कि उससे जो है ना चोरियां डकैतियां रुक जाएंगी, जो 60 साल से नहीं रुकी आज तक, उससे रुक जाएंगी। नहीं तो एक कदम तो लिया ना हुकूमत ने, ये भी तो देखें, वो नंबर प्लेट वॉच होगी कैमरों पर। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी कैमरों से बहुत चीज़ें वॉच हो चुकी हैं, अभी तक पता चल चुका है कितनी चीज़ें निकल चुकी हैं, ठीक है। नहीं तो क्या करें फिर, ना बनाइए नंबर प्लेट। नहीं, नंबर प्लेट सिक्योरिटी फीचर ना लगाएं। नहीं, देखें मेरी बात सुने, नंबर प्लेट पे अजरक होनी चाहिए, 1800 रुपये नहीं लेने चाहिए, ठीक है, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस वाले को इतना इख्तियार नहीं देना चाहिए कि अगस्त तक टाइम दिया है, किसी को आप बेफालतू तंग नहीं करें, ठीक है, इस पे नहीं करें, जिसके नाम पे नहीं उसको चालान करें, ठीक है। कानून हमेशा गरीब के लिए बना है, अमीर के लिए नहीं। कानून हमेशा मजदूर के लिए बना है, बादशाह के लिए नहीं। बादशाह 10 कुछ भी कर दे, बादशाह के लिए आज़ाद कानून है, ठीक है। जहाँ तक इन्होंने बात की, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि शमशाद कुरैशी स्टील मिल का लीडर है, पीपल पार्टी का, ठीक है, यूनियन लीडर है। उसके कहने पे हमने रेलवे ट्रैक ऑन किया, ठीक है। सीएम साहब, हमारे भी सीएम साहब है, भले वो किसी भी पार्टी से हैं, हमारे भी सीएम साहब है, उनके कहने पे हमने रेलवे ट्रैक खोला, ठीक है। एक सीईओ पावरफुल है या सीएम पावरफुल है? सीएम, एक सीएम 6 मीटिंगों में से अपनी एक बात नहीं मनवा सका। गरीब के लिए कानून है, इस पाकिस्तान में सिर्फ गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। नहीं तो शहबाज साहब को रिक्वेस्ट करें, पीएम साहब को। देखें वो कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते ना, हम तो नहीं कर सकते। अगर हमारे इख्तियार में होता, अब्दुल्ला सत्तार अफगानी के इख्तियार में जो था उसने किया, जो नेमतुल्लाह खान के इख्तियार में था वो उसने किया, जो हाफिज नईम और रहमान को ये कहते हैं कि दुख है, वो सबको पता है क्या हुआ है। देखिए, पीपल पार्टी की मैं मुखालिफत नहीं करता, मैं नजरिए की मुखालिफत नहीं करता। देखिए, मैं हाफिज साहब के दुख में बराबर हम दुख नहीं, मेरी बात नहीं, हम दुख में नहीं, हम दुख की बात नहीं कर रहे हैं, आप मुझे बात करने दें, हम दुख की बात नहीं कर रहे हैं। दुख हर किसी को है। कराची शहर के साथ क्या हो रहा है, तो आज एसी अमाल की वजह से हो रहा है। माशाल्लाह से जब बंदा घर से निकलता है बाइक पे तो डंपर वाले आके ऊपर, ठीक है, जब थोड़ा सा आगे जाता है 2 पैसे लेके ना ऊपर, ठीक है। ये आप मुझे नहीं बताया, मैं भी इसी कराची शहर का बेटा हूँ, मैं अजरक की नंबर प्लेट का बिल्कुल हामी हूँ। मैं सिंध में रहता हूँ, मैं सिंधी हूँ, भले मैं खटक हूँ, मगर मैं अपने आप को, इस सिंध ने मुझे बहुत कुछ दिया, मगर जो गलत है वो गलत है। क्या बात है, रियली अप्रिशिएट। जब आप अपने शहरों को, अपने सूबों को, अपनी सरजमीन को ऑन करते हैं, तो फिर ये ज़मीन, ये सूबे, ये शहर भी आपको ऑन करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद साबिक़ राष्ट्रपति ज़रदारी की ज़िंदगी पर भी हम रोशनी डालेंगे कि आपकी क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या कारनामे आपने इस मुल्क को क्या क्या दिया। गालबन आज आप 70 बरस के हो गए, सदर मुमलिकत, आपको हैप्पी बर्थडे और आपकी लंबी उम्र और आपकी सेहत के लिए दुआएँ मांगी जा रही हैं। पूरे मुल्क में आपकी सालगिरह के केक काटे जा रहे हैं। रियली अप्रिशिएट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, क्योंकि अब हम प्रोग्राम के आखिरी मरहल में आ रहे हैं। और फिर गालबन आज हमने मौजूदा सदर आसिफ अली ज़रदारी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, 70 बरस के हो गए। आज आपकी सालगिरह है, आपकी लंबी उम्र, आपकी सेहत के लिए हम दुआगो हैं। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप इसी तरह आम आदमी की भलाई के लिए कानून साजी करवाते रहें। आज आप जिस मनसब पर हैं, मुझे याद है माजी में भी आप इस मनसब पर रह चुके हैं। उस वक्त भी आपने उम्र कैद के जो सज़ा याफ्ता लोग थे पूरे मुल्क में, आपने उनको इस्तिस्ना दिया था, आपने उनकी सज़ाओं में कमी की थी। रियली अप्रिशिएट। जब आप अपने मनसब का सही इस्तेमाल करते हैं तो फिर लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि इस मुल्क में माजी भरा पड़ा है, हम मरने के बाद याद करते हैं, हम फिर बड़ी बड़ी हेडलाइन चलाते हैं, फिर हम उनकी ज़िंदगी पर बड़ी बड़ी स्टोरीज़ छापते हैं, हम बड़ी रिपोर्टिंग करते हैं, हम अच्छे अच्छे अंदाज से उनके वो काम भी बताते हैं जो हमने कभी पहले नहीं सुने थे। कहते हैं नहीं ये साहब कर गए थे, लेकिन जब वो हम ज़िंदा होते हैं तो हमें नहीं अप्रिशिएट किया जाता। तो ज़िंदाओं को अप्रिशिएट करें, जो आपके लोग हैं, आपके हीरोज़ हैं, उनको अप्रिशिएट करें। 18वीं तरमीम एक वो तरमीम थी जो गालबन जिसने सूबों को हुकूक दिए, अदरवाइज़ उससे पहले सूबे वफाक की तरफ देखते थे। वफाक अपनी मर्ज़ी से सूबों को पैसे देता था, तरक्याती काम रुक जाते थे, हमेशा एक फड्डा रहता था सूबों और वफाक के बीच में पैसों को लेकर, तनाज़ों को लेकर। अब सूबे खुद मुख्तार हैं, अब सूबे अपने काम खुद करते हैं। लेकिन अब 18वीं तरमीम मज़ीद अमेंडमेंट की जमात इस्लामी और दीगर पार्टियाँ ख्वाहिशमंद हैं कि आपने मज़ीद काउंसलर्स और यूसीस तक इसको फैला दें,
ताकि वो जो काउंसलर है वो खुद मुख्तारी से अपना काम करवा सके। बाजवा साहब, किस अल्फाज में याद करें? आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, आज दूसरी बार वो सदर बन गए गालबन। अब सर हम तो ज़रूर मर्द हुर सियासत के इमाम आसिफ अली जरदारी साहब के आज हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पूरे पाकिस्तान की सतह पे आज़ाद कश्मीर कराची में हमने केक कटिंग के प्रोग्राम रखे हैं। आज पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बिलावल हाउस के सामने चुरंगी पर बहुत सारे प्रोग्राम हैं। हमारे शहर के मुख्तलिफ हमने ये जो सालगिरह है ये हमारे हर पीएस में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जोन में और डिस्ट्रिक्ट सिंध की सतह पर, मुल्क की सतह पर मनाई जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनों ने खराज अकीदत पेश करने के लिए, और आज मैं तो आपसे भी गुजारिश करूंगा एक छोटा सा बिल्कुल काटेंगे सर, बिल्कुल प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले हम केक काटेंगे जरदारी साहब। यही अपने हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करने का आपके पास एक सिलसिला है। और मैं आज के प्रोग्राम के तवज्जो से आपसे एक और गुजारिश करूंगा और कुछ 10 सेकंड आपसे लेना चाहूँगा। मैं हुकूमत वफाकी हुकूमत से और अपनी सूबाई हुकूमत से भी गुजारिश करूँगा कि हमारे बहुत बड़े स्टार, हमारे बहुत बड़े फिल्म स्टार मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, कल ख़बरें लगी हैं मुख्तलिफ अखबारात में कि वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हैं। क्यों? वो शायद पाकिस्तान छोड़ने की बातें भी कर रहे हैं। उन्होंने साफ़ियों से भी बातचीत की, शायद वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो एहलिया थी, जो बहुत बड़ी वो हमारे मुल्क की फ़नकार थी रोबीना कुरैशी साहिबा, जो इंतकाल कर गई थी और अब उनकी शायद पहली बरसी गुजरी है 2 दिन कबल। तो उनका ये कहना है, जो मुझे सुनने में आया है, कि वो हुकूमती सतह पर उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया गया और हमें नहीं वो इज़्ज़त और मर्तबा दिया जा रहा। तो मैं पाकिस्तानियों से गुजारिश करता हूँ कि अगर हम अपने स्टार्स को, अपने हीरोज़ को, मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि वो अदाकार थे, देखिए हर जगह स्टार होते हैं, खिलाड़ी भी स्टार हैं, पहलवान जो कुश्ती लड़ते हैं वो भी स्टार होते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं वो भी स्टार होते हैं, जो फिल्मों में काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, फ़नकार, गुलूकार। आप तो मैं दोनों हुकूमतों से मैं गुजारिश करूँगा कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को एक तो नाराज़गी उनकी दूर की जाए और दूसरा जो है उन्हें मनाया जाए कि वो पाकिस्तान ना छोड़ें। ये हमारे मुल्क के लिए एक बड़ा मतलब गलत मैसेज जाएगा कि हम अपने सीनियर्स की, अपने स्टार्स की कदर नहीं करते हैं और उन्हें मना करके उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब उनके एजाज़ में कोई खाना रख लें, सदर ममलिकत साहब एक रख लें। मैं चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से गुजारिश करता हूँ वो जाएँ उनके घर पर, तो कम से कम वो हमारे सिंध से ताल्लुक़। क्या आपके मिनिस्टर कल्चर जो जुल्फ़िकार शाह साहब हैं वो जाएंगे उनके पास? देखिए मैं सूबाई मिनिस्टर ये आवाज़ उठाएंगे जो अब्दुर्रज़ाक बाजवा उठा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार शाह साहब भी जाएंगे और उन्हें जाना भी चाहिए, लेकिन मुस्तफ़ा कुरैशी का कद काट जो है ना, वो मैं समझता हूँ, मेरी राय है, नाकिस राय, वो किसी मिनिस्टर से बहुत बड़ा है। उनका जो कद काट है वो सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब अप्रिशिएट करें और उन्हें मुराद अली शाह साहब अप्रिशिएट करें। हम अपने प्लेटफॉर्म से मुस्तफ़ा कुरैशी साहब आपको अप्रिशिएट करते हैं। हमें याद है आपने नूरी नद जैसे बड़े बड़े कैरेक्टर सरंजाम दिए, आप हमारे मुल्क का असासा हैं, आपने हमें अच्छा कंटेंट दिया। आप हम लोग बाद में रोते, लेजेंड हैं आप। हाँ, हम बाद में नहीं रोते, हम पहले आपको सर आंखों पर बिठा रहे हैं। रियली अप्रिशिएट। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को अल्लाह सुब्हान ताला उनकी उम्र दराज फरमाए, उन्हें अल्लाह पाक सेहतमंदाना ज़िंदगी दे। लेकिन देखिए अब वो अपनी आखिरी रिंग खेल रहे हैं। हाँ। अपनी उम्र की वो 80+ हैं। बताएं। 80+ हैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। अगर आपकी मुलाकात हुई हो, मेरी 1-2 प्रोग्रामों में मुलाकात हुई है उनसे, तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, हुकूमती बेहिसी का शिकार है। ये बेहिसी मैं नहीं ये समझता कि देखें सारी जिम्मेदारी हुकूमत की भी नहीं होती। उनके जो पुरसरतार जो उन्हें पसंद करते हैं या उनकी जो फैमिली है उनकी भी कोई जिम्मेदारियां हैं, वो सारी तरफ से दिल बर्दाश्ता है। मेरा ख्याल है कि ना पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें वो इज़्ज़त और मर्तबा जिसके वो हकदार हैं, ना ही शायद हुकूमत ने और ना ही माशरे ने। हम भूल जाते हैं, जालिम लोग हैं। हम भूल गए नूर जहां कौन थी, हम भूल गए मेहदी हसन कौन, सुल्तान राही कौन था। हाँ, हम भूल जाते हैं। हम जिंदाओं के पीछे तो फैलाते फिरते, लेकिन जो गुजर जाते हैं हम उन्हें बहुत जल्द भूल जाते हैं। और ये रवायत हमें ख़त्म करनी चाहिए।
मुस्तफ़ा कुरैशी जैसा अदाकार अगर भारत में होता तो उसके मजस में होते, क्या बात है। उसके मजस में लगे हुए होते हैं और लोग उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते। तो क्यों हम ऐसा नहीं करते? हम क्यों भूल जाते हैं? क्या 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 सारी ज़िंदगी इंसान ने जवान रहना होता है? क्या सारी ज़िंदगी उसको खूबसूरत रहना होता है? क्या बूढ़ा नहीं होना होता है? क्या अल्लाह सुब्हान ताला के पास जाना नहीं होता? तो हमें तो अपने ओल्ड सिटीज़न है जो भी पाकिस्तानी है उनकी कदर करनी चाहिए, जिन्होंने अपने अपने शोबों में अपने आप को मनवाया है। आज जिस तरह प्रेसिडेंट साहब की सालगिरह की गुजारिशात कर रहे हैं, मना रहे हैं, हाँ, इसी बिल्कुल किस्म सही की है। मैं समझता हूँ कि हमें अपने दीगर स्टार्स की भी जो है ना याद बिल्कुल मनानी चाहिए, हर सतह पर मनानी चाहिए। और हुकूमती जो तकरीबात होती हैं उनमें भी जो हमारे लेजेंड्स हैं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग, उनको अप्रिशिएट करें, उनको एज़ाज़ा से नवाजा जाए। ये हमारा कौमी विरसा है, ये हमारे कौमी हीरोज़ हैं। जब हम अपने हीरोज़ को याद करते हैं, उनको भूलते नहीं हैं, तो फिर हीरोज़ दर हीरोज़ पैदा होते ही जाते हैं। मुझे प्रोड्यूसर ब्रेक का करें, लेकिन आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि ब्रेक के इस फ़ौरन बाद हम मर्द हुर बेनज़ीर साहिबा के खाविन आसिफ अली ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान का हम सालगिरह का केक काटेंगे। और उनकी लंबी उम्र और सेहत के डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में उनकी शख्सियत इतनी अच्छी ना हो, हर किसी का अपना एक स्टडी का तरीका है, हर किसी के वो कहते हैं नापने का अपना तरीका है। हमारा अपना है, बाजवा साहब का अपना है, कादिर साहब का अपना है। किस ने कितना समझा है आसिफ अली ज़रदारी को, ये वही जानता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से हाजिर खिदमत है। और गालबन आपने देखा होगा ये लोग खड़े हो गए और सामने केक है प्लेट से, बिल्कुल जैसे हमने कहा था कि प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी 70 बरस के हो गए। आपकी लंबी ज़िंदगी की दुआएं मांगी जा रही हैं, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आप इसी तरह हमारे प्रेसिडेंट बने रहें और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा। हम आपकी आज सालगिरह मना रहे हैं अपने स्टूडियो में अब्दुल रज़ाक बाजवा और हमारी टीम के साथ। बाजवा साहब, किन अल्फाज में ज़रदारी साहब को खराज तहसीन पेश करेंगे? मैं आज मर्द हुर और सियासत के इमाम आसिफ अली ज़रदारी साहब को उनकी 70वीं सालगिरह पर, और मैं ख़ास तौर पे विनिस टेलीविज़न की तरफ से और हमारी एंकर बहन और हमारे साजिद साहब और हमारे जो मेहमान जितने भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए, हम सब उनकी उम्र दराजी के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला उन्हें लंबी उम्र अता फ़रमाए, सेहतमंदाना ज़िंदगी अता फ़रमाए। वो जिस तरह से हमारे वतन की, हमारे मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, इसी तरह से ये खिदमत जारी रखें और इस मुल्क को जितनी मजबूत जमहूरियत दे सकें वो दें। हम उनके लिए दुआ गो हैं। तो इस मौके पर मैं साजिद साहब से गुजारिश सर बिल्कुल केक काटते हैं। और ये बाजवा साहब के साहबजादे भी आ जाएं, इन्होंने भी कहा थी मैंने भी ज़रदारी साहब का केक काटना है, मुझे भी स्क्रीन पे लें। फ़ायदा कामरान क्या कहेंगी? आसिफ अली ज़रदारी साहब की 70वीं सालगिरह है। मैं उनको सालगिरह की बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। और केक मौजूद है, मेरे ख्याल से इंतजार नहीं चलें जी, करना है। आ जाएं बाजवा साहब, आ जाएं, हाथ लगाएं, आ जाएं उमेर भाई आ जाएं। हैप्पी बर्थडे टू आसिफ अली ज़रदारी साहब। आपको अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे, आप इसी तरह मुल्क के लिए काम करते रहें। आसिफ अली ज़रदारी साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अब्दुल रज़ाक बाजवा एंड अदर्स, पूरा मुल्क ही खुशी मना रहा है। आपको सलाम, आपको सलाम, सलूट। आपको सर सलाम किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को सलूट। चलें जी, रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। मुझे साजिद हुसैन और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें, लेकिन इजाज़त से पहले बाजवा साहब मैं खिलाता हूँ ना आपको, मैं खिलाता हूँ आसिफ अली ज़रदारी साहब की सालगिरह का, प्रेसिडेंट साहब की सालगिरह का गालबन मॉर्निंग शो में सबसे पहला केक हमने काटा है। हैप्पी बर्थडे। ये जी बाजवा साहब ने केक खा लिया। सर अब मुझे भी तो आपका थोड़ा सा देना है ना। चलें। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन। खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा।
दरख्तों में परिंदे गुनगुनाते हैं, नरम ठंडी और पुरसुकून हवा का झोंका, चाय का एक कप, इतनी छोटी मुस्कुराहट छुपाने के लिए।